तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स पार्ट। ओके, सो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिफंड रूल्स ड्राफ्ट रिलीज। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इशूड द ड्राफ्ट रूल्स अगेंस्ट द कंपनी सच एज काइंड एनर्जी, वोडाफोन, ओके, टेकिंग स्टेप्स टू वेव टैक्स डिमांड्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है ये पहले जान लेते हैं। देखिए, अंडर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स एनी एग्जिस्टिंग और a new law from an old date. If the government feels that any domestic or foreign company is evading tax, then it implements a new law from the old date. याद रख लीजिए, मतलब क्या है, अगर किसी गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग टैक्स बचा रहे हैं या टैक्स एवेड कर रहे हैं, तो इवन दो दे विल ब्रिंग अप द न्यू लॉ, और ये लॉ जो है अब से लागू नहीं होगा, प्रीवियस डेट से लागू करेंगे ये लोग, ओके, ताकि एडिशनल टैक्स भी कलेक्ट किया जाए। Recently, the government has implemented the Taxation Laws Amendment Act 2021 to repeal the provision of the tax levying law from its earlier date. So what are the key points to complete the process of abolishing retrospective tax imposed on companies like Gain Energy, Vodafone? The Income Tax Department released the draft rules. Under this, companies will have to give an undertaking to withdraw all their lawsuits. जो भी lawsuits उन्होंने फाइल करे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ओके, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। एंड दिस कंपनीज विल हैव टू फाइल एन इंडिमनिटी बॉन्ड दैट विल नॉट क्लेम एनी कंपेंसेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन फ्यूचर। Next, as per the time limit given in the rules, in the first 45 days, the company will have to give an affidavit to withdraw all pending cases. Thereafter, the income tax authorities concerned will issue a certificate of acceptance or rejection of the claim within 15 days from the date of receipt. Companies will have to fulfill the promise related to compensation within 60 days of getting the certificates, and after this, the order to give relief to companies will be passed within 30 days दोस्तों, and refund amount will be given after at least 10 days. आपको refund amount भी दे दिया जाएगा। The purpose of this amendment is to assure that all pending income tax proceedings जो चलते आ रहे थे will be withdrawn on fulfillment of the condition laid down under amendment. Okay. नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की बात करें तो रिसेंटली इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी सजेस्टेड दैट ए वेरी मॉडरेट वेल्थ टैक्स कुड पुश अप ग्लोबल इनकम। क्या क्या की पॉइंट्स है? टैक्स रेंजिंग फ्रॉम 1% to 3% ऑफ ए ग्लोबल बिलियनियर्स वेल्थ ऑफ ओवर $1 million कुड जनरेट 1.6% ऑफ द ग्लोबल इनकम। याद रख लीजिए, अगर आप 1 से 3% तक अगर आप टैक्स लगा देंगे ग्लोबल बिलियनियर्स पे तो आपको $1 million का वेल्थ मिलेगा, ओके, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1.6% आपको ग्लोबल इनकम बढ़ेगी। According to the report, taxation in unequal societies helps tackle extreme inequality and generates enough revenue to invest in the future. The report found that the average increase in the wealth of billionaires per year is more than 9%. Therefore, imposing 3.5% tax on them means that their wealth is going to increase further in coming years. Wealth tax can raise a significant amount to invest in problems like जो भी टैक्स अगर आप कलेक्ट कर रहे तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। As per investment in the report, 15% minimum corporate tax will result in the revenue gains of 83.3 billion euros in European Union and 57 billion euros in US और 6.1 billion euros in China। और इंडिया की बात करें तो हाफ यानी 0.5 बिलियन यूरोस इन इंडिया। इतना रेवेन्यू आप गेन कर सकते हैं दोस्तों। द टॉप 0.1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अर्न्स मोर इनकम देन बॉटम 50%। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। इनफैक्ट इन इंडिया में भी आपको इस तरह के स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। The share of the world billionaire in the total wealth has been increased from 1% of the total household to 3.5% today. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ GST, digitization and demonetization, India's informal economy has been raised around 15 to 20% of the formal GDP. ओके, पहले जो है 52% थी, अभी डिक्रीज हो चुकी है। की पॉइंट्स क्या है इसमें? कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग एंड फूड सर्विसेज स्टेट द टू सेक्टर्स विद द लार्जेस्ट शेयर इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी डिक्लाइन द मोस्ट शेयर ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन हाउसिंग। ओके, अगर आप कंपेयर करेंगे 2017-18 से, द ई श्रम पोर्टल विच इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैज रजिस्टर्ड 5.7 करोड़ वर्कर्स टिल 30 अक्टूबर। ओके, द स्टेट डेटा शोज दैट द टॉप 4 स्टेट्स अकॉर्डिंग जो ये लोग कंपनी करते हैं फॉर 72% ऑफ द टोटल रजिस्ट्रेशन, वेस्ट बंगाल on the top, followed by the Odisha and UP. Agriculture, in which the share of informal economy was more than 91%, okay, in 2018, it has been declined about 30% now. India's vast unorganized sector देख लेते हैं तो India's informal sector is a backbone of economy, क्योंकि अगर आप एक बार informal sector को एक proper channel में ला लेंगे ना तो आपको आपके इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा दोस्तों। According to the credit suisse, it accumulate for almost half of the GDP, the livelihood over 400 million workers and their जो livelihood जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स
Okay? In the unorganized sector, as a, other than unorganized property or partnership enterprises will also include enterprises operated by the cooperative trust, private limited companies. मतलब ये सारा कुछ इसमें include किया जाता है. There is a labor force of 50 crores which is equal to 90% of which workers in unorganized sector. Next है हमारा periodic labor force survey. Okay, on the basis of the data collected in this quarterly bulletin for the October to December 2022 has been released. क्या क्या highlights हैं? The unemployment rate for the ages between 15 to 36 years above in urban rose to 10.3% in December 2020 when compared to the corresponding months a year ago. The labor force participation rate for ages 15 years and above in the urban areas for 47.3% in October-December quarter of 2020. Okay, and the worker population ratio for ages 15 years and above in urban areas was 42.4% in October-December quarter of 2020. Okay, and next देख लेते हैं conceptual framework of key employment and unemployment indicators for the quarterly bulletin. The periodic labor force survey gives the estimates of key employment and unemployment indicators like the labor force participation rates, worker population ratio and unemployment rate. ये सारा कुछ इसमें consider किया जाता है. Labor force participation rate क्या होता है? Is defined as the percentage of person in a labor force. कि कितने परसेंटेज ऑफ पर्सनस जो काम कर रहे हैं लेबर फोर्स में. मेल की अगर बात देखें तो 73.6 है, फीमेल 20. ओके, टोटल ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 47.3 है. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन ए पॉपुलेशन. ओके, एम्प्लॉयड पर्सन की बात कर रहे हैं तो मेल 66.7 है, फीमेल 17.9 है, ऑन एन एवरेज 42.4. अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमॉन्ग द पर्सन इन द लेबर फोर्स. देखिए ये सिर्फ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों. इसमें उतना जो कि रॉकेट साइंस नहीं है, कोई समझाने का तरीका नहीं, कोई ये जो बेसिक डेफिनेशंस है. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेशन होगा. वर्कर पॉपुलेशन रिलेशन जो एम्प्लॉयड पर्सन से रिलेटेड होगा. लेबर फोर्स यानी जो वर्कर्स होते हैं ओके लेबर फोर्स में उनके रिलेटेड होगा. राइट, तो 7 years ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना ये देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हैज इंक्रीज टू अबाउट 43 करोड़ विद ए टोटल डिपॉजिट ऑफ 1.46 लाख करोड़. दोस्तों व्हाट आर द की पॉइंट्स? PM JDY has completed 7 years of implementation. The scheme was announced by the Prime Minister Narendra Modi in the Independence Address on 15th August 2014 and was launched on August 28th with an aim to bringing the financial inclusion. It was launched to ensure that the people have an affordable access to financial services. क्या क्या? Such as बैंकिंग हो गया, क्रेडिट, इंश्योरेंस, रेमिटेंस, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा. व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ द बैंकिंग टू द अनबैंक पीपल, securing the insecure, funding the unfunded. And what are the achievements? A total number of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts as of August 18, 2021 is 43.04 crore. Out of this 23.87 crore account holders are women जो कि रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज कंप्राइज ऑफ 66.69 करोड़ जो कि 28 करोड़ है. एंड आउट ऑफ टोटल 43.04 करोड़ अकाउंट्स 36 करोड़ अकाउंट्स आर एक्टिव वाइल एवरेज डिपॉजिट पर अकाउंट इज 3000 रुपीज़. याद रख लीजिए. तो 43 अकाउंट्स में 36 करोड़ अकाउंट्स अभी भी एक्टिव है और इनका जो एवरेज डिपॉजिट रह रहा है वो 3000 है दोस्तों. ओके, so the total RuPay cards is issued to account holders under this scheme is also increased to 31.23 crores. And under Pradhan Mantri Garib Kalyan package, a total of 30,945 crore have been deposited in the accounts of Women Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana during COVID lockdown. Next important topic है हमारा bad bank. Recently the government has approved the guarantee of 30,600 crore to National Asset Reconstruction Company Limited to help the banking sector clean up with a 2 lakh crore of stress asset in the time-bound manner. What is a bad bank? Bad bank होता क्या है? टेक्निकली ए बैड बैंक इज ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. अगर आपने सुना होगा AMC के बारे में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो लोन थोड़े रीपे नहीं होते हैं दोस्तों, तो वो लोन्स को जो है कंट्रोल में ले लेते हैं, उनको मैनेज करते हैं और जो टाइमली मैनर में रिकवर करने का काम होता है इनका. ओके, बैड बैंक स्ट्रक्चर की बात करें, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. ओके, इट्स ए पार्ट ऑफ न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर जो कि इस 2021 के बजट में अनाउंस किया गया है. ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द कंपनी हैज़ अप्लाइड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर लाइसेंस एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. NARCL has been set up by the banks to resolve the debt by consolidating the bad debt assets. Public sector bank to retain 51% ownership in the NARCL. याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. कितना ओनरशिप रहेगा? 51%. NARCL will acquire stress assets of about 2 lakh crore from various commercial banks in various phases. Okay.
जो भी बैड लोन्स हैं जो रिपे नहीं हो पा रहे हैं 2 लाख करोड़ तक ये लोग ले सकते हैं. इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये will try to sell distressed assets in the market. Public sector banks and public finance institution will hold maximum 49% stake in IDRL, sir, and remaining stake 51% will be held by private sector lenders. How will this NARCL IDRCL work? First of all, NARCL will buy bad loans from banks. Okay, procedure समझ लीजिएगा. It will pay 15% of the agreed price in cash and remaining 85% in the form of security receipts. तो ये क्या करती है NARCL? बैंक के पास जाती है, भाई आपके पास जो भी बैड लोन से हमें दे दीजिएगा, हम खरीदेंगे. 15% जो है कैश में देंगे हम पैसा और 85% हम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देंगे. When the properties are sold, the rest will be paid to the commercial bank with the help of IDRCL. If the bad bank is unable to sell the bad loan or has to sell it at a loss, the government guarantee will apply. मान लीजिए अगर बैड बैंक जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी है वो सेल नहीं कर पाती या मजबूरन उनको लॉस में बेचना पड़ता है, तो जितना भी लॉस अमाउंट है वो गैप जो रहता है ना, सो वो हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. इसके लिए 30,600 करोड़ ऑलरेडी रेस कर चुके हैं. द गारंटी हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. नेक्स्ट, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इस बार बजट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था. Recently, the government of India has launched the national monetization pipeline. According to the estimates of NMP, the core assets of the central government in the 4-year period from fiscal year 2022 to fiscal year 2025 have a total monetization potential of 6 lakh crore. कितना? 6 lakh crore. The plan is in line with the Prime Minister's strategic disinvestment policy. What are the objective? Unlocking the values in a brownfield project, transfer of only revenue rights and ownership rights to the private sector, NMP for infrastructure development, and to provide a clear framework for monetizing under NMP. Monetization का मतलब क्या है? Under this monetization, the government use the transfer revenue rights to the private sector for a specific period of time in exchange of advance money. याद रख लीजिए. For example, real estate investment जो ट्रस्ट आप सभी लोग जानते हैं और इन्वेस्ट जो है और मेजर स्ट्रक्चर यूज टू monetize the assets in road and power sectors. These shares are also listed on the exchange, also provide liquidity to the investors through secondary market. दोस्तों important है. Other monetization models through public-private partnership as follows: that operate, maintenance, transfer, toll operate, transfer, and operation, maintenance and development. दोस्तों याद रख लीजिए. So OMT and TOT is being used in a road and highway sectors, and government says the NMP proposed for brownfield project where investment has already been made, that is an asset that is not monetized or under monetized. तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जो रोड, रेलवे, पावर सेक्टर एसेट्स हैं जो ये मोनेटाइजेशन में इन्वॉल्व हैं विल हैव अ टोटल शेयर ऑफ 66% इन द मोनेटाइजेशन. ओके, द रिमाइंडर ऑफ द मोनेटाइजेशन विल कवर सेक्टर्स एज टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, एविएशन, पेट्रोलियम पाइपलाइंस, वेयर हाउसेस, स्टेडियम्स. ये लोग मोनेटाइज करने वाले. मोनेटाइज का मतलब ये भी कि देखिए जो भी गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रेवेन्यू राइट्स हैं, वो ये लोग प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वाइट करेंगे. ओके, और उसमें जो है आपको 66% का रेवेन्यू रहेगा इसमें. एंड द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम will be operated in the phased manner, will be rolled out in the current financial year. The monitoring value of the first phase will be 15% of the total plan, जो कि 0.88 lakh crore रहेगा. And NMP will be operated within 100 lakh crore national infrastructure pipeline announced in December 2019. The estimated value of the total assets is 6 lakh crore under NMP during the 4 years period. Okay, कितना रेवेन्यू हमको एस्टिमेट किया गया 4 साल में? 6 lakh crore. The above estimated price will be based on the NIP declared by the center and 14% of the proposed outlay. So what are the description of the properties? देख लें. The list include 26,700 kilometer road, railway station, train operation and tracks. Okay, and 2,08,608 kilometers power transmission line, 6 gigawatt hydroelectric and solar power assets, 2.86 lakh firm fiber property, 14,000 telecommunication towers, 8,000 natural gas pipelines. इस सारा कुछ जो है मोनेटाइज करने वाले हैं दोस्तों अभी. Okay, in the road sector the government has already completed 1,400 kilometers. Okay, जो कि आपको 17,000 करोड़ का अमाउंट भी मिल चुका है. In addition, 15 railway station, 25 airports, 160 coal mining projects and 31 projects, okay, in major ports, 210 lakh metric ton of warehousing ये भी दिया गया है. And redevelopment of the various government colonies and IDs is also be provided. Okay. तो क्या क्या challenges हैं? देखिए हर काम में challenge रहता है, वो भी very important है. Lack of identifiable revenue streams across various assets, low level of capacity utilization in gas and petroleum pipeline networks, regulated tariff in power sector assets and less investor interest for below 4 lane national highways. तो ये challenges है, इसको ओवरकम करना बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टार्टअप्स इन इंडिया. जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप्स अकॉर्डिंग टू द हुरुन इंडिया एडेड 25 यूनिकॉर्न्स टू द स्टार्टअप स्पेस इन 2021, while 32 companies are expected to become unicorns in 2 years and 54 in 4 years.
और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक हम 100 तक चले जाएंगे, 100 यूनिकॉर्न्स। ओके, एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स, ये देख लेते हैं एक बार हम। ये क्या हो गया भाई, ब्लैंक। ओके, नो इट इज परफेक्ट। चलिए, की पॉइंट्स क्या है? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड एंड द नंबर ऑफ गज़ल्स एंड चीतास इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। ओके, एंड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इंडिया एडेड 3 यूनिकॉर्न्स एवरी मंथ। क्या बात कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहा है, राइट? सो गज़ल इज अ स्टार्टअप एस्टैब्लिश आफ्टर 2000 that has potential to become a unicorn in 2 years, while cheetah can become a unicorn in next 4 years. दोस्तों, gazelles have estimated valuation of $500 million to $1 billion and cheetah range from $200 million to $500 million. ठीक है, so startup India fund scheme देख लेते हैं। Union Ministry of Commerce and Industry has recently launched a startup India seed fund scheme to provide a financial assistance for the startups, and this scheme will provide approximately 945 crore to startups over the next 4 years, and it will support over 3,600 startups through 300 incubators. Incubators क्या होते हैं? Incubators वो होते हैं जहाँ पे आपके आइडिया को फ्लोरिश किया जाता है, आपके आइडिया को प्रॉपर चैनल दिया जाता है दोस्तों। The scheme will create a strong startup ecosystem in Tier 1, Tier 3 cities. Startup in these cities are often denied funding. याद रख लीजिए। Next, about Startup India initiative, it was launched in 2016 and it envisaged creating a strong startup ecosystem in the country to nurture innovation and provide opportunities to budding entrepreneurs. It focus on 3 areas. एक आपको simplification हो गया आपका, okay, and hand holding. Next, financing support and incentives. Next, industry academy partnership incubation दोस्तों। okay, तो इस एरियाज में जो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपको सपोर्ट करेगी। Oh shit, sorry. सॉरी, माइक निकल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो स्टार्टअप प्रॉब्लम्स इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं? मेनी स्टार्टअप फेल ड्यू टू मार्केट कंडीशन, एंट्री टाइमिंग। फॉर दिस रीजन एग्जांपल ऑफ अनसक्सेसफुल स्टार्टअप आर मोर विजिबल, whereas it is fact that any big industrialist climbs the ladder for the failure first. Next, no proper startup rule and exit provision has been made so far. Lack of government investors, okay, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है के शेप रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। के शेप रिकवरी, द पॉइंटर्स आर इंडिकेटिंग दैट इंडिया इज विटनेसिंग ए के शेप रिकवरी। के शेप इस तरह से रहता है आपको, more than V-shape with the various groups and industry recovering much more rapidly than counterparts. What is K-shape recovery? So K-shape recovery is one which the performance of different parts of the economy diverges like a arms of the letter K. मैंने आपको बताया ना इस तरह से। In the K-shape recovery, some parts of the economy may see strong growth while others continue to decline. What indicates that economy is witnessing a K-shape recovery? क्या क्या इंडिकेशन है? पहला जो है साइंस फ्रॉम इंडस्ट्री। ए रिपोर्ट बाय क्रिजिल इंडिकेट्स दैट इन द ईयर 2021 जो 2-wheeler सेल्स है ना, 2-wheeler सेल्स गाड़ी, तो दे सेल्स जो उनका डिक्लाइन हो चुका है 3% to 6% ईयर ऑन ईयर ऑन द टॉप ऑफ लोअर बेस इन ईयर 2020। इन 2020 की बात करें, आई थिंक द सेल्स ऑफ 2-wheelers आर द सेकेंड लोएस्ट इट हैज़ बीन इन 7 years एंड द फेस्टिवल सीजन वॉज अनेबल टू रेक्टिफाई द फिनोमिनन। फेस्टिवल सीजन में कुछ कर नहीं पाया इस बार। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, वो भी एक बड़ा एक कंसिडर कर सकते हैं आप। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द फ्यूल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स while lowering the corporate taxes. While inflation soars the income of the middle income and lower class जो middle income होते हैं, they have best remained a constant leading to a sustained loss in the disposable income. सही बात है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो मिडिल क्लास जो है गाड़ी लेने की थोड़ा सोचेगा, वो अपने ज़रूरत के चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट है, जो रोज़ाना उसको लाइवलीहुड्स के लिए चाहिए, उसके पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसकी वजह से जो है कई सारे सेक्टर्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, स्पेशली इन द 2-wheelers। ऑन जॉब्स देख लेते हैं दोस्तों। ओवर 5 million पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स इन अक्टूबर अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट। अनएम्प्लॉयमेंट भी कपल्ड विद द हाई फूड एंड फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, तो पॉवर्टी में जा चुके हैं। ओके, तो कई सारे सेक्टर्स के ऊपर मार पड़ा है इसका भी। ऑन नरेगा, दिस इज अ ग्रेटर डिमांड नाउ फॉर मनरेगा जॉब्स दैन इन द प्री कोविड-19 एरा, क्योंकि 2021-22 की बात करें तो गवर्नमेंट हैड cut its budget allocation towards Narega by 34% दोस्तों, for in its ability to compensate workers in timely and fairly manner.
Okay, the people who are looking for Manrega work cannot afford to be unpaid for such long duration, and this gain ties back to placing upward pressure for unemployment figures. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना जो ग्रेटर डिमांड जो था और उनका जो बजट एलोकेशन है उसको भी कट कर दिया, क्योंकि इनके पास कई सारे बैकलॉग्स पड़े हुए हैं, उनको ही क्लियर करना पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों. स्टिमुलस एंड ग्रोथ की बात कर लेते हैं. द रिकवरी इन द स्टॉक मार्केट एंड अदर सच फाइनेंशियल एसेट्स ओवर द पास्ट year has been phenomenally, but only less than 5% of India directly benefited from the said recovery. Even though अगर आप 2020 के चार्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वी हैव द स्टॉक मार्केट हैज इंक्रीज अ फिनोमिनल, बट इंडिया को कितना बेनिफिट हुआ है उससे, लेस दैन 5% है दोस्तों. तो कोई मतलब बढ़ के भी हम लोगों को उतना फ़ायदा नहीं हुआ है. नेक्स्ट है हमारा रिटेल डायरेक्ट स्कीम. द आरबीआई हैज़ अनाउंस्ड द प्रपोजल फॉर द रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर द इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम. ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो है जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं आपके जैसे या मेरे जैसे, स्कीम में बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, उनके बॉन्ड्स को डायरेक्टली किसी के बगैर, विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी लाइक म्यूचुअल फंड्स, आप इसको खरीद सकते हैं. एंड इट इज़ सिमिलर टू प्लेसिंग द फंड्स इन ए डेट इंस्ट्रूमेंट्स, याद रख लीजिएगा, such as a fixed deposit in the banks. What are the benefits of RDS? With the government being borrower, there is a sovereign guarantee for the funds and has zero risk of default. याद रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ही बेच रहे हैं, उसको ही खरीद रहे हैं, तो कोई रिस्क का सवाल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक करिए. ऑल्सो द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ऑफर बेटर इंटरेस्ट रेट्स दैन द बैंक फिक्स डिपॉजिट डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया रखा है, लेटेस्ट यील्ड ऑन द बेंच मार्क 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 6.366%. नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 होता क्या है. आरबीआई अडॉप्टेड द वन नेशन वन ओम्बुड्समैन अप्रोच टू मेक द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म सिंपल एंड मोर रेस्पॉन्सिव टू द यूजर्स. इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में. द मैकेनिज्म विल कैटर टू ऑल द कस्टमर्स फ्रॉम बैंक्स, एनबीएफसीज एंड द नॉन बैंक इशूअर्स ऑफ द प्रीपेड कार्ड इंस्ट्रूमेंट्स. तो सिंगल मैकेनिज्म आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों, बिकॉज द सेंट्रल बैंक हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द अप्रोच ऑफ वन नेशन एंड वन ओम्बुड्समैन. अभी तक क्या हुआ करता था, कई सारे ओम्बुड्समैन बने हुए थे डिफरेंट, तो कंज्यूमर्स को भी एक तरह का कन्फ्यूजन बना रहा था कि हम किसके पास जाएं. तो इसीलिए सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है, आरबीआई ने, कि वन नेशन वन ओम्बुड्समैन स्कीम रहेगा, सारे चीज़ों को वही कवर करेगा, एनबीएफसीज को, बैंक्स को, सब कुछ. दिस अप्रोच विल मेक ए ग्रीवेंस प्रोसेस ईजी by enabling the customers to register a complaint under the integrated scheme with a centralized reference point. Clear हो गया. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड हेल्थ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वन बाय वन देख लेते हैं. WHO अप्रूव्स कोवैक्सीन दोस्तों. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन ए प्री क्वालिफिकेशन और emergency use listing for the Bharat Biotech Covaxin vaccine. What are the key points? The approval has been given by the Technical Advisory Group and Independent Advisory Panel of WHO. The approval was expected on 26 October 2021. In fact, अभी तक मिल चुका है. And the WHO has already approved 6 vaccine for the emergency use, that is AstraZeneca Covishield, Moderna की mRNA वैक्सीन, Sinopharm BBIP की, और Sinovac जो कोरोना वैक्सीन, ओके, फाइजर एंड जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन. तो इन सारे चीज़ों को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया. What does this approval mean? It has been granted EUL for the use in the person 18 years and above over the 2 doses spaced over 4 weeks apart. However, no recommendation has been made for the use in the children. याद रख लीजिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है. The move is expected to ease the international travel for Indians who have opted for the vaccine, but experts says that this would be subjected to, किसे subject होना चाहिए, countries clearing Covaxin through regulatory process. अबाउट कोवैक्सीन की अगर देखेंगे आप, सो कोवैक्सीन इज ए होल वीरियन इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ किया जाता है अगेंस्ट सार्स कोविड-19 विच इज डेवलप इन पार्टनरशिप विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे. नेक्स्ट है हमारा मोलन्यूपिराविर एंड पैक्सोलाइड. रिसेंटली द 2 न्यू ओरल ड्रग हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19. ओरल ड्रग मतलब यानी आप इसको जैसा टैबलेट की तरह आप लेते हैं. The UK drug regulator announced that it has approved the first oral antiviral for treatment of COVID-19. The drug नाम है Molnupiravir, has been developed by the Merck and Ritzbach. Pfizer announced trial result of its investigational COVID-19 oral antiviral candidate Paxlovid. क्या है इसका नाम? Paxlovid. Saying it significantly reduced the hospitalization and death. तो इनके डेटा के हिसाब से ये माना जा रहा है कि इस ड्रग को लेने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट है, डेथ रेट है, वो रिड्यूस हो चुका है. In India, Molnupiravir is undergoing trials. In US, it's been evaluated by the Food Drug Administration. So what is Molnupiravir? देखिए Molnupiravir या फिर MK4482 EIDD2801 इसके केमिकल नेम्स हैं, देख सकते हैं आप.
विच इज़ डेवलप इनिशियली टू ट्रीट द इन्फ्लुएंजा हैज़ बिन रीपर्पज टू ट्रीट द कोविड पेशेंट्स। तो पहला मकसद ये था कि इन्फ्लुएंजा को ट्रीट कर सकें हम, बट इसको जो है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। इट इंटरवीन्स विद द रेप्लिकेशन ऑफ SARS-CoV-2 thereby reducing the severity of the disease. Okay. Next, it is the most effective when used early. The UK has recommended its use as soon as possible following a positive test within the 5 days of symptoms. Okay. And what is Paxlovid? It is a investigational, याद रख लीजिए, अभी इन्वेस्टिगेट चल रहा है इसका, SARS-CoV-2 प्रोटियाज इनहिबिटर एंटीवायरल थेरेपी। इट इनहिबिट्स वायरल रेप्लिकेशन, जो भी SARS-CoV-2 का आप देख रहे होंगे जो वायरस होता है, ओके, उसका रेप्लिकेशन लिया जाता है, दैट अकर्स बिफोर वायरल रेप्लिकेशन। इट डिजाइन टू बी एडमिनिस्ट्रेड ओरली। Pfizer has entered into the advanced purchase agreement with the multiple countries and is negotiation with the several others. Significance: the UK clearance to molnupiravir and the promise shown by the Pfizer drug could pave the way for more effective management of COVID-19. It would ease the administration of drugs to more people. Okay, अभी जिस तरह से माहौल छाया हुआ है कि लोग जो है अभी भी डर बना हुआ है लोगों के बीच में, तो इस तरह का ओरल ड्रग अगर आ जाए, अगर सक्सेसफुली हो, देन लोगों के बीच में एक भरोसा आ जाएगा कि हाँ भाई, जिस तरह से हम लोग टैबलेट्स लेते हैं फॉर मेडिसिन के लिए, तो उसी तरह का एक ड्रग भी रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे प्रोग्रेस इसका। एंड इंडियन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ए पेपर रिसेंटली पब्लिश इन द US हैज फाउंड दैट इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद इंटरक्रॉपिंग इंक्रीजेस फूड प्रोडक्शन वाइल रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। इंटरक्रॉपिंग प्रोसेस इंक्रीज, एक इंटरक्रॉपिंग होता क्या है दोस्तों? देखिए, इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि आप जो है एक क्रॉप के बीच में और एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं उसको। तो इसकी वजह से क्या है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो रिसेंट रिले प्लांटिंग एनहांसेस फील्ड विद इन फील्ड रोटेशन और स्ट्रिप रोटेशन अलाउइंग स्ट्रिप फॉर प्लांटिंग अदर प्लांट्स सच एज ग्रास फ्रूट्स बिसाइड्स द मेजर क्रॉप वर मोर फ्रूटफुल। एक तरफ आप जो है मेजर क्रॉप्स भी लगा रहे हैं, उसके बीच में ही आप जो है फ्रूट्स के प्लांट्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। Soil mulching that is available means such as crop straw in addition to major crops such as wheat or rice, and no till or reduced tillage which increase annual crop yield by 15.6% to 49.9% and decreasing the environment footprint by 17.3%. देखिए, रिले प्लांटिंग जो है, प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम प्लॉट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओके, एक क्रॉप के बीच में आप डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अगर एक फील्ड ले ली जाती थी तो एक ही क्रॉप वहाँ पे ग्रो करते थे। तो अभी जो है यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने की बात की गई है इन ए सेम प्लॉट। ओके, एग्जांपल ऑफ सच रिले क्रॉपिंग वुड बी प्लांटिंग राइस और व्हीट, उसके साथ साथ कैलीफ्लावर का हो गया, ऑनियन का हो गया, समर ग्राउंड, ओके, और उसी सीजन के फ्रूट्स को अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो इट आल्सो लेस रिस्क एंड सिंस यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन वन क्रॉप अलोन। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब, स्ट्रिप क्रॉपिंग हैज़ बीन यूज्ड इन ए US where they grow wheat along with the corn and soybean in the same farm in the alternative manner, जैसे मैंने आपको बताया। However, this needs large lands. This land is divided into strips and strip of grass are left to the grow between the crops. एक क्रॉप और दूसरे क्रॉप के बीच में घास को उगा दिया जाता है ताकि एक काइंड ऑफ बैरियर आप समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट बेनिफिट्स देखते हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स हैव हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया दोस्तों। ओके, वेस्टर्न इंडिया, एक मिनट। एक मिनट, क्या हो गया इसको। तो नेक्स्ट है हमारा ड्रोन यूसेज फॉर वैक्सीन डिलीवरी दोस्तों। ओके, सो द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया लॉन्च्ड आई ड्रोन बेस्ड डिलीवरी मॉडल फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ड्रोन लाया गया है। एक मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? The iDrone has been developed by the Indian Council of Medical Research, and iDrone stands for ICMR's Drone Response and Outreach in the Northeast. The main objective of this tool is to facilitate vaccine delivery to rough and hard-to-reach terrains of India and to improve the healthcare accessibility to the last mile. Currently, the drone-based delivery project is being implemented in Manipur, Nagaland, and Union Territory of Andaman Nicobar Island. दोस्तों, एक मिनट, रिकॉर्ड हो रहा है यानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर स्क्रीन ही कैप्चर कर रहा था जब से, तो मैंने फिर से रिस्टार्ट किया उसको। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्रोन के बारे में। ओके, ड्रोन यूसेज ऑफ फॉर वैक्सीन डिलीवरी।
तो अभी तक कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है? मणिपुर, नागालैंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड. एंड दिस ICMR collaborated with Indian Institute of Technology, Kanpur, for conducting an initial study to test the capacity of drones to carry out the transfer vaccine safely. And drone used to plant forest also. Hyderabad-based technology startup has come up with the innovative idea of aerial seeding campaign as a solution for the reforestation challenge. दोस्तों, what are the key points? Marut drones, which had earlier deployed drones successfully in agriculture operation, had for delivery of vaccine and is now using them for greening large swathes of denuded forest lands through Hara Bhara initiative. Film actor Rana Daggubati flagged off the first seed copter drone with the seed balls, kicking off the first campaign in Telangana. The first payload of 1.5 lakh seed balls was delivered in the KBR National Park in city. Seed balls contain a variety of seeds rolled within a ball of clay, and Marut drones had engaged the service of local people, self-help groups and NGOs in the preparation of the seed balls. The entire operation is being done on pro bono basis with no funding from the government. Due permission for use of drone technology have been obtained from the Information Technology and Electronics Communication Department. Next, India's first herbicide tolerant and non-GM rice की बात कर लेते हैं. So, इंडिया का रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप ए कंट्री फर्स्ट नॉन-GM herbicide tolerant rice varieties, जो कि Pusa Basmati 1979 और Pusa Basmati 1985, which can directly sown as a compared to the traditional seedings and can save water and labor. Okay, जो दो वेराइटीज है बासमती के कंटेन ए म्यूटेटेड एसिटोलैक्टिक सिंथेस जीन, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द farmers to spray broad spectrum herbicide. This eliminates the need for nursery preparation, where paddy seeds are the first grown into young seedlings, then uprooted and planted in the main field after 25 to 35 days. Okay, so ये जो है imazthrapy is an effective against एक मिनट. सो इमास्टेफायर है वो एक्चुअली, वो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिख रहा था. तो इज एन इफेक्टिव अगेंस्ट द ब्रॉड लीफ ग्रासेस एंड वीड्स, हाउएवर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन कॉमन राइस वेराइटीज. याद रख लीजिए. ओके, सो कॉमन राइस वेराइटीज में वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते. इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉप एंड इन्वेसिव प्लांट्स. एंड हाउएवर द न्यू बासमती कल्टिवेटर्स कंटेन ए म्यूटेटेड एसिटोलैक्टिक सिंथेस जीन whose DNA sequence has been altered using the chemical mutant called ethyl मीथेन सल्फोनेट. ओके, सो एक्चुअली जो अभी जो बासमती कल्टिवेटर्स हैं जो बासमती राइस को कल्टिवेट करते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक्सेटोलैक्ट सिंथेस एक जीन है दोस्तों. वो जो DNA सीक्वेंस है उसको मॉडिफाई करके वो लोग यूज़ कर रहे थे. बट अभी जो नया बासमती राइस जो इन्होंने बताया है एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों ने, उसमें भी इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, कुछ एक्स्ट्रा केमिकली म्यूटेंट किया है, जिसका नाम है इथाइल मीथेन सल्फोनेट. दिस अलाउज द प्लांट्स टू tolerate the application of the herbicide, and thus the herbicide is only destructive to weeds and invasive plants. And it is important to note that no foreign genes are involved in this process. The herbicide tolerant trait is produced through mutation breeding, thus this variety is not a genetically modified variety. Okay, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. इंडिजिनियस मेमोरी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं. ए टीम ऑफ रिसर्च इन IIT बॉम्बे लेड बाय उद्यान गंगुली, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अलॉन्ग विद द SCL, हैव सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड ए CMOS जो कि 180 न्यूटन मीटर बेस्ड 8-bit मेमोरी टेक्नोलॉजी है दोस्तों. दिस टेक्नोलॉजी इज अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन. व्हाट आर द की पॉइंट? रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे हैज इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर मेमोरी. ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है. ओके, ये याद रख लीजिए आप. सेमीकंडक्टर मेमोरी टेक्नोलॉजी दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एट कमर्शियल यूनिट्स ऑफ 180 नैनोमीटर नॉट्स इन इंडिया. So these memories are used to customize chips by giving them यूज़र स्पेसिफिक स्टोरेज ऑफ डिजिटल डेटा. ये ज़्यादातर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी आप सभी लोग जान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, राइट. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहे हैं तो उनको जो है बहुत ही टाइनी चिप्स होना पड़ता है, और टाइनी चिप्स में वो ज़्यादा मेमोरी स्टोर करना चाहते हैं. सो IoT connects tiny chips which are identical but distinguished by an identity barcode, and the generic chips can now be designed and make application specific offsets added to make expensive custom chip design, saving time and money for the users. This is very important. And the project was initiated by the Department of Science and Technology. Intensification of the research in the high priority areas. The team at IIT Bombay partnered with IIT Delhi also, and SETS China and DRDO दोस्तों for the hardware encryption. तो इन सारे लोगों के साथ इन्होंने मिलकर फाइनली CMOS जो कि 180 नैनोमीटर्स बेस्ड 8-bit मेमोरी का सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप किया है. चलिए, so what are the important? The memory technology is critical to the data security. It is essential for present and future India fabs. It will be a game changer by enabling secure memory and encryption hardware for the country. Next है हमारा important topic काशी चमन.
A frontline demonstrators of a high yield variety of a bhendi kashi chaman was conducted recently by the Indian Institute of Vegetable Research Varanasi mein to showcase the yield performance and potential among the farmers. Okay. So this open pollinated high yielding variety of the bhendi was developed by IIVR. bhendi जो आप सभी लोग जानते हैं लेडीज फिंगर, जो कि एक वेजिटेबल है. ओके तो इसको इन्होंने क्या किया, हाई यील्डिंग वेराइटी में बनाया है दोस्तों रिसेंटली, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च. इट कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ समर एंड रेनिंग सीजन. याद रख लीजिए, बोथ समर और रेनी सीजन में इसको आप कल्टिवेट कर सकते हैं. दिस वेराइटी इज टॉलरेंट टू येलो वीन मोसाइक वायरस, ओक्रा, एनेशियल लीफ कर्ल वायरस diseases such are most dangerous disease for the bhendi and major bhendi cultivation problems. Okay. So the yield protection of this variety is 21.66% more in sector, and this variety is becoming popular in Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Jharkhand, northeastern state like Manipur, Mizoram, Tripura. Other varieties of the okra in India की बात करें तो काशी अगेटी है, काशी सृष्टि हाइब्रिड है, काशी ललिमा है, काशी वर्धन है, और शिटला ज्योति, शिरला उपहार, काशी सद्धारी, काशी विभूति, ओके, काशी मंगल. तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ हैं ओकरा के. ओके तो काशी चमन जो है एक भेंडी रिलेटेड वेराइटी है, जो भेंडी लेडीज फिंगर हम जिसे कहते हैं. इसको एक नई वेराइटी में डेवलप किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ताकि इसको आप समर और रेनी सीजन दोनों में कल्टीवेट कर सकते हैं. और जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीज़ है येलो वेन डिसीज़ और ओकरा डिसीजेस, ये भी इसके रेसिस्टेंट है दोस्तों. इनका कहने का मकसद ये है. नेक्स्ट है सैटेलाइट इंटरनेट. Following the successful launch of 36 satellites, OneWeb's low Earth orbit constellation reached 218 in orbit satellites. So about OneWeb's LEO internet program देख लेते हैं क्या है एक्चुअली. Using LEO satellites, OneWeb seeks to offer connectivity across the UK, Alaska, Northern Europe, Greenland, Arctic Sea and Canada. दोस्तों याद रख लीजिए. तो इन सारे कंट्रीज़ को जो है ये OneWeb LEO इंटरनेट प्रोग्राम के जरिए से कनेक्ट किया जा रहा है. एंड द कंपनी एक्सपेक्ट द सर्विस टू बी स्विच ऑन बिफोर और एंड ऑफ दिस ईयर. It calls the program the 5 to 50 service of offering internet connectivity to all regions of north of 50 degrees latitude. जो भी 50 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में हैं, जितने भी कंट्रीज वहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो उनको जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की गई है इस प्रोग्राम के तहत. समझ में आ गया. द बेनिफिट्स ऑफ लियो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट. द लियो सैटेलाइट्स आर पोजिशन अराउंड 500 to 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ. ओके लो अर्थ ऑर्बिट में इसको रखा गया है कंपेयर टू द स्टेशनरी ऑर्बिट विच वॉज अप्रॉक्सिमेटली 36,000 किलोमीटर अवे. ये जो लियो सैटेलाइट्स ऑर्बिट क्लोजर टू द अर्थ, they are able to provide stronger signal and faster speeds. याद रख लीजिए, faster speed than fixed satellite system, because the signal travel faster through the space than through fiber optic cables. They also have potential to rival if not exceed existing ground based network. तो अगर इन्होंने ground based network से नहीं किया, because उन्होंने जो है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं the signal travel faster through space than through fiber optic cables. They also have the potential to rival if not exceed existing ground based networks. तो पोटेंशियल देख लेते हैं क्या क्या. लियो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इज प्रेफरेबल इन एरियाज दैट कैन नॉट बी रीच बाय फाइबर एंड स्पेक्ट्रम सर्विस. द टारगेट मार्केट विल देयरफॉर बी रूरल पॉपुलेशन एंड मिलिट्री यूनिट्स ऑपरेटिंग अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज. What are the challenges? LEO satellite travel at a speed of 27,000 km per hour and complete a full circle of planet in 90 to 120 minutes. As a result, individual satellites can only make direct contact with the land transmitter for a short period of time. So GSAT-24 सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं. स्टेट ओन्ड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च ए 4-ton GSAT-24 communication satellite on board on Ariane 5 rocket belonging to the European Space Agency. What are the key points? According to the NSIL, GSAT-24 is a 4-ton class communication Ku band satellite built by ISRO, will be put into orbit using Ariane 5 rocket by Ariane Space. The fully funded GSAT-24 satellite by NSIL is expected to be launched in the first quarter of 2021. तो इस साल ये लोग लॉन्च करने वाले हैं. देखते हैं इसकी सफलता कहाँ तक मिलती है. सो एंड दिस NSIL said in the statement that the entire satellite capacity of GSAT-24 will be leased to its committed customer Tata Sky to meet its DTH application requirements. Okay. Complete satellite है Tata Sky वालों को देने वाले हैं. And earlier Secretary of Department of Space and Chairman of ISRO K. Sivan had said that NSIL will acquire 3 communication satellites, GSAT-20, GSAT-22 and GSAT-24. ओके. NSIL वॉज इनकॉर्पोरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको. NSIL वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6 March 2019 हैज ए wholly owned company of Government of India. It is a commercial arm of ISRO. The main task is to activate Indian industry to take up high technology space related activities. कब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था? 6 March 2019 को. Okay. The development and the commercial use of the product services, सारा कुछ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का ये लोग देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन. ये भी बहुत ही न्यूज़ में रहा है.
तो इसको जान लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन फॉर्मली लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 11 नवंबर 2021। कब लॉन्च हुआ था? 11 नवंबर। सो इट विल बी द प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज। इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? ISP aims to be the forum of the space industry in the Indian private sector and partner the government of India and other key stakeholders across the space industry segments. तो इनका मेन मकसद है to contribute the government of India vision of making India आत्मनिर्भर भारत a global leader in the space arena. नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोजिशन एंड मेंबर्स की बात करें तो ISPA इज ए रिप्रेजेंटेटिव बाय लीडिंग होम ग्राउंड एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन विद एडवांस कैपेबिलिटीज इन स्पेस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इट्स फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को हो गया, ओके, वन वेब, मैप माई इंडिया, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज, ये सारे कुछ मिलकर इसके फाउंडिंग मेंबर है दोस्तों। तो ISPA ग्लोबल भी बहुत ही काम कर रहा है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल न्यूज़ में पढ़ा था कि US के साथ हम मिलकर जो हमारे पास ISPA है कि हम किस तरह से स्पेस फील्ड में किस तरह से एक अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। सो अदर कोर मेंबर्स इंक्लूड गोदरेज, ह्यूक्स, ओके, अनंत टेक्नोलॉजीज, ये सारा कुछ और मस्कार इंडिया हो गया, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सारे कुछ मिलकर इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सो इनके फंक्शंस क्या हैं? द एसोसिएशन विल एंगेज विद द स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द इकोसिस्टम फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द एनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोग ऑलरेडी US के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। ISPA will also work towards building global linkages for the Indian space industry to bring in critical technology and investments, जो at par with global technologies से meet होने के लिए हमने इसको बनाया है। ISPA also plans to work in very close coordination with the IN Space to further space vision for the government. So next देख लेते हैं space sector reforms की अगर बात करें तो for 75 years since independence, Indian space have been dominated by the single umbrella of Indian government and government institution. आप सभी लोग जानते हैं 75 ईयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, अब भी जो है इसरो ही करता आ रहा था सारे कामों को। तो इसीलिए बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू इसरो द करेंट साइज ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी स्टैंड्स एट अबाउट $360 बिलियन। हाउएवर इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 2% ऑफ द स्पेस इकोनॉमी। अगर आप US चले जाएं, वहाँ पे SpaceX हो गया, टेस्ला के नाम की कंपनी है, ओके, जो इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्हीं का SpaceX है, और कई सारे डिफरेंट छोटे मोटे आपको प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनीज देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद द नासा उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है, कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। बट हमारे इंडिया में ऐसा कोई नहीं था, तो इसीलिए ऐसे डेवलप करने के लिए हमने NSIL को लाया, ओके, अभी ISPA को लेकर आ रहे हैं ताकि हम इसरो को भी मदद मिल जाए और हमारा जो स्पेस इकोनॉमी है एक पोटेंशियल कैप्चर बन सके दोस्तों। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स। इंडिया करेंटली स्टैंड्स ऑन द कस्प ऑफ बिल्डिंग ए स्पेस इकोसिस्टम विद इसरो बीइंग द गाइडिंग बॉडी एंड ऑलरेडी 355+ स्टार्टअप्स, ओके, सच एज अग्निकुल, कॉस्मोस, कायरू टेक्नोलॉजीज, ध्रुवा स्पेस, ये सारे कुछ स्टार्टअप्स अभी निकल कर आ रहे हैं, अपने आइडियाज़ को पेश कर रहे हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड ए IN स्पेस, जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसे कहा जाता है, जो कि एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है दोस्तों, ताकि इंडियन स्पेस एक्टिविटीज़ को हम कमर्शलाइज कर सकें, यानी प्राइवेट सेक्टर को अभी हम वेलकम कर सकें, उनके आइडियाज़ को हम यूज़ कर सकें और उनके साथ हम कोलैबोरेट करके हमारी स्पेस पोटेंशियल इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। A supplement to the ISRO, the agency promotes the entry for non-government private entities in the Indian space sectors. Okay, so this is the entire chapter of Indian Space Association. तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या कहते हैं हम लोगों को, उसके बारे में जान लेते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन So recently, World Health Organization revised its global air quality guidelines and recommended a more stringent standards for major pollutants. What are the key points? This is the first update of the World Health Organization since the year 2005. These guidelines aim to achieve recommended air quality levels for all countries. This new WHO guidelines mainly contain 6 pollutant particulate matter, that is ozone and nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide, which are not only major health hazards in themselves but also increase the amount of other harmful pollutants. The PM 2.5 norm for 24-hour average has been changed to 15 micrograms per meter cube in 2005 from 25 microgram. देखिए उन्होंने और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है नॉर्म्स को, पहले 25 माइक्रोग्राम हुआ करता था, अब इसको 15 माइक्रोग्राम कर दिया है दोस्तों। Other recommendation of this guideline state that the average ozone level during the 24-hour period should not exceed 100 micrograms per cubic meter, while nitrogen oxide should not exceed 25 micrograms, and in the case of sulfur dioxide it should be below 40 micrograms. These guidelines recommended the new air quality levels to protect the health of the world population by reducing the levels of major air pollutants.
And what is the impact of new guidelines on India? The new air quality guidelines mean that almost of all of India will be considered polluted area for most of the year. The annual PM 2.5 average in India is 40 है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए. Well, annual limit WHO ने जो सेट किया है वो 10 है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम इंटू 4 गुना ज़्यादा है, 40 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब. तो हम लोगों को और भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एयर पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस किया जाए. अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूस 20 to 30% ऑफ द एयर पोल्यूशन इन द सिटीज़. ऑल्दो द WHO गाइडलाइंस आर नॉट बाइंडिंग एंड इज मूविंग डज नॉट हैव इमीडिएट इफेक्ट ऑन इंडिया. ओके, बाइंडिंग नहीं है, फिर भी जो है WHO अगर गाइडलाइंस निकालती है तो हमारे अच्छे के लिए ही निकालती है. तो अब से अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो आगे चलकर आने वाले 10-8 साल में वी कैन, क्या पता हम लोग अचीव भी कर सकते हैं इस टारगेट को. नेक्स्ट है मॉस्कुरिक्स. The World Health Organization has endorsed the world's first malaria vaccine on October 6, 2021 in the hope that will boost efforts to stop the spread of parasitic disease. What are the key points? Malaria is a life-threatening disease caused by the parasite and to spread to people through the bite of infected female Anopheles mosquito. It is preventable and treatable. RTS और AS01 ट्रेड नेम इसका क्या है? मॉस्कुरिक्स है. इज अ वैक्सीन ट्रीटिंग, कौन सा वायरस को ट्रीट करता है? P. falciparum, the most prevalent malaria strain in Africa दोस्तों. It is the first and only vaccine to provide the partial protection to young children. इसको डेवलप किया गया था 1987 में by the British pharmaceutical manufacturing GlaxoSmithKline. The active substance in the mosquito is made from the protein found on the surface of the Plasmodium falciparum parasite. RTS aims to prepare immune system to defend itself from the bite of malaria mosquito from the first stage of entry into the human blood. तो इसका मकसद यही है कि जब बाइट करता है मस्किटो तो वहीं पे ही आपको इम्यून सिस्टम डेवलप कर दिया जाता है दोस्तों. ओके, एंड वैक्सीन डोज देख लेते हैं. WHO recommends that children under 2 years of age in sub-Saharan Africa and other areas with moderate to high malarial transmission receive 4 doses, and the vaccine effectiveness in preventing severe cases of malaria in children is about 30%, but it is only approved vaccine. The European Union Drug Regulator approved it in 2015, saying the benefits outweighs the risk. यानी जो यूरोपियन यूनियन ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने तो 2015 में ही इसको अप्रूव कर दिया था कि हमको कोई ऐसा रिस्क नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम इसको अप्रूव करते हैं बोल के. एंड कंट्रीज विच एरेडिकेटेड मलेरिया, द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री, जो कि UAE हो गया 2007 में, मोरक्को हो गया 2010 में, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, श्रीलंका, किर्गिस्तान, पैरागे, उज़्बेकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर एंड रिसेंटली चाइना. सो 2 कंट्रीज रिसेंटली एलिमिनेट किया है, एल सल्वाडोर एंड चाइना. नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें का जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा. द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, the most comprehensive survey on the socio-economic and health indicators in the country, has been released. Previously, this survey has conducted in 1992, 1988, 5 and 2015. Okay, 2005 and 2015 में कंडक्ट किया गया था. So इस बार जो रिपोर्ट निकल कर आई है, क्या क्या हाईलाइट्स है देख लेते हैं. वुमेन आउट नंबर मेन, याद देख लीजिए. Fertility has decreased and India is getting older. There were 1020 women for 1000 men in the country in 2019 and 21. This is the highest sex ratio for any national family health survey as well as since the first modern, जब सेंसस कंडक्ट किया गया था 1881 में. ओके, उसके बाद से लेकर अब तक हमने एक जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो पाया गया है दोस्तों. द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ ऑल्सो कम डाउन बिलो द थ्रेशोल्ड एट विच द पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. द चिल्ड्रन न्यूट्रिशन इम्प्रूव बट एट स्लोअर पेस. चिल्ड्रन न्यूट्रिशन तो इम्प्रूव हुआ है क्योंकि कई सारे स्कीम्स लाए गए थे, मिड डे मील स्कीम्स, ओके, आंगनवाड़ी स्कीम्स को गवर्नमेंट लाकर बच्चों को अच्छा खाना खिलाया जा रहा है. स्कूल्स में जब ये जाते हैं तो रोज़ाना उनको आफ्टरनून एक एग दिया जाता है जो न्यूट्रिशियस फूड होता है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, बट स्लोअर पेस पे इंक्रीज़ हो रहा है. द शेयर ऑफ स्टंटेड लो हाइट फॉर एज एंड वेस्टेड, जो लो वेट फॉर हाइट और अंडर वेट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. स्टंटेड का मतलब क्या है? एक बच्चे के एज के हिसाब से उसकी हाइट जो है कम रहती है. वेस्टेड का मतलब क्या है? उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट जो है कम रहता है. ओके, बहुत ही थिन रहता है वो बच्चा. अंडर वेट के हिसाब से देखें तो उसकी उम्र के हिसाब से इतना वेट होना चाहिए बट उससे वो कम रहता है, इसे हम अंडर वेट कहते हैं. हैव ऑल कम डाउन, अच्छी बात है. जो 2015 में हम लोगों ने कंपेयर किया था तो उससे कम हो चुका है, ये अच्छी बात है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रोग्रेस. हाउएवर द शेयर ऑफ सीवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन हैज़ नॉट द शेयर ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन और एनीमिक चिल्ड्रन हैज़ कम डाउन. इन लोगों को, ये कैटेगरी लोगों को हम लोगों अभी कम करना है. इंडिया माइट बी फूड सिक्योर बट न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम फॉर अडल्ट्स टू. दो इंडिया माइट हैव अचीव द फूड सिक्योरिटी, 60% ऑफ द इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड द न्यूट्रिशियस डाइट्स दोस्तों. सो व्हाट्स न्यू, नया क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया. सो दिस सर्वे इंक्लूड सम न्यू फोकल एरियाज सच एज डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन,
एक्सपैंडेड डोमाइंस ऑफ द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इस बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको इंक्लूड किया गया। डायबिटीज़ वालों को, हाइपरटेंशन वालों को, ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व किया गया। चलिए अबाउट नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में देख लेते हैं। इट्स अ लार्ज स्केल मल्टी रोल सर्वे कंडक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट द इंडिया। Okay, and all this national family health survey have been conducted under the stewardship of the Ministry of Health and Family Welfare Government of India. So every national family health survey has a two specific goals to fulfill. They are to provide the essential data needed by the Ministry of Health and Family Welfare and to provide insight regarding the incorporation emerging health and family welfare issues. Clear? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के रिलेटेड। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी। तो चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। थार बायोस्फीयर रिजर्व, द एक्सरसाइज इज टू क्रिएट मच अवेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इन वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट हैज़ बीन स्टेप अप द सपोर्ट ऑफ यूनेस्को विच हैज़ अश्योर्ड टू प्रोवाइड फंड्स एंड टेक्निकल हेल्प फॉर प्रोटेक्टिंग द रेयर fauna in the region. What are the key points? The project may be included shortly in the UNESCO flagship Man and Biosphere program. दोस्तों, the climate variability in Thar desert based on the stretches of sand, जिस तरह से थर डेजर्ट में जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है वो आपको डिपेंड्स ऑन स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स, उसके बाद में हिलॉक्स हुए, ग्रेवल प्लेन्स हो गया। द एरिड रीजन, वेजिटेशन, ह्यूमन कल्चर एंड एनिमल लाइफ आर वेरी डाइवर्स इन द कंपैरिजन विद अदर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। सो दिस प्रोजेक्ट, ये जो बायोस्फीयर प्रोजेक्ट लाया गया है, इसको फॉर्मुलेट किया था स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, विच मेनली फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डेजर्ट इकोलॉजी एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। The exercise has been continuing since 1988 when the task force was appointed for preparing the project document. Very important. Okay. So the latest proposal has been prepared in the association with Central Arid Zone Research, okay, Jodhpur, covering the aspects of conservation of flora and fauna and preservation of desert ecosystem. The efforts were being made to protect the endangered species of Great Indian Bustard, desert cat, chinkaras, vultures and other birds. तो MAB प्रोग्राम होता क्या है दोस्तों? तो द प्रोग्राम इज अंडर यूनेस्को एंड स्ट्रेंथन द कोरिलेशन बिटवीन नेचुरल इकोसिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है था जो डेजर्ट एरियाज में, उससे ये लोग और सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस दोनों को बायोलॉजी के रिलेटेड कंटेक्स्ट में रिलेट करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड MAB प्रोग्राम, ताकि वहाँ की जो रेयर फौना है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। Next, invasive species. Botanist Dr. Punekar, along with several environmentalists, retired forest department official, farmers, green activists, and other stakeholders, have come forward to form a forum called Movement Against Biological Invasion. Okay, जो भी invasive species हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है दोस्तों। Key points: the movement against the biological invasion is a green movement aimed at systematically rooting out invasive alien species दोस्तों। Okay, MABI has so far conducted several unpleasant and eradication campaigns in various parts of Maharashtra, as well as across the country, northeastern states like Sikkim. Okay. Next, through this seminar, workshops, slide shows, video teasers, documentaries, तरह तरह के जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए गए हैं ताकि लोगों में उन्हें मदद हो सके एंड टू बिकम लिटरेट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, जो IAS भी कहते हैं। The Convention on Biological Diversity defined IAS as an alien species whose introduction and spread cause harm to ecosystem. Sorry, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनको प्रोटेक्ट करने का था, नहीं, इसको प्रोटेक्ट करने का नहीं था, इसको निकाल देने का था, क्योंकि ये जो नॉर्मल इकोसिस्टम्स को जो है वो हार्म प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, उनके हैबिटेट, स्पीसीज एज वेल एज सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, ह्यूमन हेल्थ। थ्रेट्स फ्रॉम द इन्वेसिव एलियन स्पीसीज: द फॉरेस्ट इन्वेसिव स्पीसीज कैन replace native plants, eliminate the food and cover for wildlife, and threaten the rare plant and animal species also. The spread of IAS is very dangerous, जो invasive alien species है. It's wiping out local native species such as grasses and other herbaceous species. As a result, the local food chain and local flora have to compete with the invasive alien species for space, light. देखिए, अगर ये उनकी जगह ले लेंगे तो जो एक्चुअल रहना चाहिए था वहाँ पे, जो उनका इकोसिस्टम है पहले से, उनको तकलीफ में हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इनके साथ साथ इनको भी स्पेस शेयर करना पड़ेगा, लाइट शेयर करनी पड़ेगी, खाना शेयर करना पड़ेगा, तो इसीलिए इनको निकाल देना ही वहाँ से बेटर है। दिस स्पीसीज कैन ऑल्टर इकोसिस्टम फंक्शन एंड इंक्रीज लॉस इन द फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो। नेक्स्ट है टाइनी प्लांट दैट कैन डाइजेस्ट लो इंटेंसिटी प्लास्टिक शीट्स। Researchers from the University of Madras and Presidency College, Chennai, have isolated an algae species that can act as an agent of biodegradation of plastic sheets. तो इन्होंने क्या किया, एक algae species को आइसोलेट किया है जो कि एक एजेंट ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक शीट्स, एक एजेंट की तरह काम करते हैं लोग फॉर बायोडिग्रेडेशन ऑफ द प्लास्टिक शीट्स, इनको गलाने में।
तो की पॉइंट्स का है, इन अर्लियर स्टडी द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विद प्लास्टिक डिग्रेडेशन हैव बीन स्टडीड एंड इन द प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट हालत की बात करें, एंड द स्टडी रोल इज प्लेड बाय, किसने एक्चुअली बताया था पूरा डिटेल, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो दिस रोल इज प्लेड बाय माइक्रो आल्गा, ओके, एंड इट इज़ अ जेनस ऑफ माइक्रोस्कोपिक algae कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप दोस्तों। एंड दिस माइक्रो algae प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स। तो ये algae जो है ना, ये क्या करता है, कई तरह के सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स को, एंजाइम्स को, ओके, टॉक्सिन जैसे कि साइनोटॉक्सिन्स हम कहते हैं, ये सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। ये जो हार्मोन्स है पॉलीमर शीट से रिएक्ट होते हैं, उनके जो पॉलीमर बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करते हैं, और ये जो है जो इनका हार्मफुल इफेक्ट्स जो हो रहा था पहले एनवायरनमेंट को, उसको रिड्यूस कर देते हैं दोस्तों। द रिसर्चर्स आर प्लानिंग टू कोलैबोरेट द इंडस्ट्री टू स्टडी दिस टेक्नोलॉजी ऑन पायलट स्केल एंड इवेंचुअली गो ऑन ए लार्ज स्केल। करेंटली द स्टैंडर्ड प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक सच एज लैंड फिनिंग या फिर इंसिनेशन हम करते हैं, ओके, रिसाइकलिंग करते हैं प्लास्टिक को लेकर। दिस टेक्निक्स ऑफ सर्टन लिमिटेशन यूजुअली हैव ए साइड इफेक्ट ऑल्सो, बट ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं ये टेक्निक से। तो देखते हैं आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से वाइड स्केल रेंज में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोरल रीफ डिग्रेडेशन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, अबाउट 14% ऑफ द ओल्ड कोरल हैज़ बिन लॉस्ट इन द लेस दैन डिकेड। यानी 10 साल के अंदर अंदर, 10 ईयर्स के अंदर अंदर 14% ऑफ कोरल रीफ हम खो चुके हैं ऑलरेडी। क्यों ऐसा हो रहा है ये देख लेते हैं। So key points in the largest ever analysis of coral reef, health scientists found that between 2009 to 2018, the world lost almost 11,000 square kilometers of coral reef, okay, which is equivalent to more than all living coral in Australia। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जितने भी कोरल्स आपको दिखेंगे ना ऑस्ट्रेलिया में, उनसे कई गुना ज़्यादा है। The study which analyzed 10 areas with coral reefs reported that coral bleaching events due to increased sea surface temperature were biggest cause behind coral loss। Okay. So what are coral reefs? Coral reefs are made up of calcium carbonate released by coral organism located in the ocean। ये किससे बने होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए थे। दे आर लाइम बेस्ड ऑर्गेनिज्म विद ए हार्ड स्ट्रक्चर। द कलरफुल आल्गे जूज़ैंथले जिसे कहा जाता है, जो आपने देखा होगा समुंदर के पास कलर के आपको आल्गे नजर आते हैं, उसको हम जूज़ैंथले कहते हैं, और फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनसाइड द हार्ड सरफेस ऑफ दिस कोरल्स। तो जूज़ैंथले और कोरल्स एक दूसरे का खाना बनते हैं, एक दूसरे का साथी बनते हैं दोस्तों। ओके, The coral reefs are considered to be the hotspot of ocean biodiversity of the world, and they are also called marine rainforests. They are found at low depths. Clean and sediment-free water is essential for growth of coral because due to sediment, coral close their mouth and they died. Next, coral reefs or coral reef distribution की बात करें, most of the coral in the world is found in Indo-Pacific region. They are found in the region up to 30 degrees of equator दोस्तों। About 30% of the total coral found in is found in the south east region। Okay, याद रखिए, टोटल जो कोरल रीफ मिलता है ना दुनिया में, उसका 30% हिस्सा आपको साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर सदर्न फिलीपींस टू ईस्टर्न इंडोनेशिया एंड वेस्टर्न न्यू गिनिया। कोरल इज ऑल्सो फाउंड इन माइक्रोनेशिया, वनातु, पापुआ न्यू गिनिया, ओके, लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। द कोरल रीफ ऑल्सो फाउंड इन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इंडियन ओशन रीजन में भी आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। When corals are under stress due to any change in temperature, light or nutrition, they expel the symbiotic algae। देखिए, जब भी कोई कोरल ओके स्ट्रेस में रहते हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिशन, दे विल कम आउट फ्रॉम द सिम्बियोटिक algae that live in the tissues. The zooxanthellae causing the coral to turn white. This phenomenon is called coral bleaching or coral bleaching कहा जाता है इसको। नेक्स्ट दो बार रिपीट हो गया है। Coral is damaged by the tropical cyclones, high winds, powerful ocean waves, and debris scattered in the ocean. 6 major cyclones have damaged Great Barrier Reef in the past 7 years. So, starfish are one of the main reason for the loss of coral cover. It has caused extensive damage to the coral reef over past 40 years. दोस्तों, coral bleaching events have been common in Indian Ocean, Pacific Ocean, Caribbean Ocean, but due to global warming, due to continuous rising ocean temperature जो है यहाँ पे कई तरह का लॉस भी फेस करना पड़ रहा है। एल नीलो हो गया, ओके, कोरल्स हैव डिप्लीटेड इन ए लार्ज स्केल ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, या फिर अब सी वाटर वार्मिंग ले लीजिए, ये भी जो है कहीं ना कहीं कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। और मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओशन एसिडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ओशन एसिडिफिकेशन प्रिवेंट्स कोरल फ्रॉम बिल्डिंग देयर हार्ड स्केलेटन्स। क्योंकि क्या होता है इसमें, ओशन जो है ह्यूमन कास्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ना कोरल्स, तो उन लोगों को बहुत ही दिक्कत हो जाती है हार्ड स्केलेटन्स बनाने के लिए। ओशन एसिडिफिकेशन इज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लास्टिक ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स. As per the World Economic Forum, the use of plastic has increased 20-fold over the last 50 years, but the plastic also poses a massive environmental challenge. तो अभी हमने देखा एक टाइनी प्लांट है जो आलगे लो इंटेंसिटी प्लास्टिक शीट्स को डिग्रेड करने में मदद कर रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्लास्टिक जो है तबाही मचाए रखा है दोस्तों हर चीज़ में. और पर कैपिटा यूज ऑफ प्लास्टिक इज ग्रोइंग एंड वी बिकम रिचर, वी विल एंड अप जनरेटिंग मोर प्लास्टिक वेस्ट. सो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. करेंटली 400 million tons of plastic are produced annually, but as the UN finds, only 9% of the plastic waste have been recycled. Okay? 400 million tons में 9% अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप जान सकते हैं कि कितना कम रिसाइकिल हो रहा है. ओवर 6.3 billion tons is buried, okay, and into nature, leading to rivers, carrying to the sea. As per the World Bank, 8 million tons of plastic waste enter the sea each year by 2050. The world oceans could contain more plastic than fish. दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे नेशनल ज्योग्राफी के डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं. बड़े बड़े शिप्स जाते हैं समुंदर के बीच में, वो लोग जो है अपने मशीनरी से प्लास्टिक को जब बाहर निकालते हैं तो इतना ढेर आपको देखने को मिलता है वहाँ पे. कभी देखिएगा, नेशनल ज्योग्राफीज में दिखाता है, डिस्कवरी प्लस में इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज रहते हैं. द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ए कलेक्शन ऑफ डिब्रीज एंड साइज ऑफ टेक्सास, हैज़ क्रिएटेड अ लाइफलेस जोन इन पैसिफिक. माइक्रोप्लास्टिक हैव पोल्यूटेड कोरल अटॉल्स, माइटी पीक्स, आर्कटिक स्नोज एंड स्नो सॉइल बीनीथ आवर फीट. इंडिया देख लेते हैं, इंडिया की हालत क्या है. ए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड puts the total annual plastic waste generation in India at 3.3 million metric tons. India's per capita plastic consumption of less than is 11 kg and nearly 10th of the United States of America. तो यहाँ पे आपको पर कैपिटा इनकम कितना है यूएसए का 109 है दोस्तों. ओके, कितना है 109. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा. एंड व्हाट आर द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ द प्लास्टिक. ग्लोबल वार्मिंग ये तो होना ही था. थ्रेट टू स्पीसीज, जो भी फिशर्स हैं, जो भी तरह तरह के स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं, उनके लिए हानिकारक है. इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स, माइक्रो प्लास्टिक, ये सारा कुछ रहेगा. एंड व्हाट आर द सोल्यूशन टू द प्लास्टिक प्रॉब्लम. रिसाइकलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस प्लास्टिक डिस्कार्ड्स. ए फ्यू सेंटर स्टडी फाइंड क्लोजिंग द कलेक्शन गैप मीन्स कनेक्टिंग 5 lakh people a day up to 2040. द लाइवलीहुड प्रोजेक्ट आर इनॉर्मस. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की बात करें, दिस प्लास्टिक्स कैन बी डिकम्पोज बाय एन एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब्स, algae. अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया था. ग्रीन इंटेलिजेंस से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं. लिमिट यूसेज. इन 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021. इनका मकसद यही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाए, ओके, प्रोहिबिट किया जाए, लो यूटिलिटी हो बट 2022 तक. तो ऐसे कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर जो है हम इसको रोक पाएंगे. ग्रीन हाइड्रोजन हो गया. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, हाइड्रोजन विल मेक अप 12% ऑफ द एनर्जी मिक्स बाय 2050. The agency also suggested about 66% of the hydrogen used must come from the water instead of natural gas. What is green hydrogen? This is very important. Green hydrogen is produced by the electrolysis of water using renewable energy and has a low carbon footprint. क्या है इसके पास, ग्रीन हाइड्रोजन के पास जो है लो कार्बन फुटप्रिंट रहता है दोस्तों. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं लोग, ये वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में पास करते हैं. मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ. पास करने के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों तरह में स्प्लिट कर देते हैं, और इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक तो पानी, दूसरा वाटर वेपर. और ऐसा माना जा रहा है कि लेस दैन 1% ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज ग्रीन हाइड्रोजन. तो इंडिया की स्टेटस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, वो हम जान लेते हैं अभी. सो इंडिया का स्टेटस अगर आप देखेंगे तो इंडिया कंज्यूम्स अबाउट 6 million tons हाइड्रोजन एवरी ईयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, मेथनॉल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स एंड रिफाइनरीज. दिस कुड इंक्रीज टू 28 million tons by 2050 due to rising demand from the industry. By 2030, the cost of green hydrogen is expected to compete with the hydrocarbon fuels also. So it is also projected that India hydrogen demand will increase 5-fold, 5 गुना बढ़ जाएगा by 2050 तक, with 80% of being green. So India will become a net exporter of the green hydrogen by 2030 due to the cheap renewable energy tariffs. So benefits क्या क्या हैं दोस्तों. Green hydrogen can drive transition to clean energy, combat and climate change. Okay, क्योंकि इसके पास low carbon footprint होता है. Under the Paris Climate Agreement, India pledged to reduce emission intensity of economy by 33 to 35% from 2005 levels to 2030. It will reduce import dependency on fossil fuels. Okay, and the localization of electrolyzer production and the development of green hydrogen products can create a new green technology, जो कि 18 to 20 billion dollars है दोस्तों. What are the challenges? One of the biggest challenges faced by the industry for using hydrogen commercially is economic sustainability of extracting green hydrogen. सही बात है, क्योंकि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए. ओके, एक आसान सा तरीका होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन को निकालने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं
कि वाटर उसको स्प्लिट करना, उसके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होता है. बट एनी हाउ इन नियर फ्यूचर वी विल डेवलप दैट थिंग ऑल्सो. फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल सेल्स, hydrogen must cost competitive with conventional fuels technology on per mile basis. Fuel cells which convert hydrogen fuel to usable energy for cars are still expensive. अभी भी एक्सपेंसिव है कहीं ना कहीं. एंड द हाइड्रोजन स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू रिफिल हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार इज वाइडली अंडर डेवलप. देखिए, एक बार जब आप हाइड्रोजन बनाना, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चैलेंजेस भी ओवरकम हो जाएंगे दोस्तों. ठीक है, हर कोई चैलेंजेस अगर मान के बैठ जाएगा तो आगे कौन बढ़ेगा, राइट. तो व्हाट आर द स्टेप टेकन? तो इसलिए गवर्नमेंट ने यूनियन बजट फॉर 2021-22 की बात करें तो उन्होंने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को बनाया है ताकि एक रोड मैप हो, आने वाले कुछ सालों के लिए हम लोग हाइड्रोजन का एक एनर्जी सोर्स को यूज़ कर सकते हैं. अदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. ओके, ब्राउन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस यूजिंग कोल वेयर एमिशंस आर रिलीज टू द एयर. ग्रीन हाइड्रोजन जो कि नेचुरल गैस से बनाया जाता है. ब्लू हाइड्रोजन ये भी नेचुरल गैस है दोस्तों. ओके, और एक यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है. नेक्स्ट, ग्रीन इंडिया मिशन. The ambitious Green India Mission plan for undertaking afforestation activities under the National Action Plan on Climate Change had hit the roadblocks in some states, resulting 30% shortfall in the target. So, through 5 of 15 states and union territories shortlisted for mission have achieved 100% of the target. 3 others, West Bengal, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, have so far not come on board to improve the quality of green cover in the country. So, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटका, सिक्किम, इन्होंने तो 100% अपने 5 साल का जो टारगेट है वो अचीव कर चुके हैं. While others reported shortfall in varying degrees. The ministry data shows that 15 states and union together have a quality change in forest and tree cover, an area of 1,17,000 kilometers. So what is the background? Main important. What is Green India Mission? हमने क्यों लेके आए थे? देखिए, Green India Mission was launched as one of the 8 mission under NAPCC for protecting, restoring and enhancing the country diminishing forest cover. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, green related to the trees. And responding to the climate change by combination of adaptation and mitigation process. तो एक होलिस्टिक व्यू माना जा रहा है जो कि मल्टीपल इकोसिस्टम पे फोकस करेगा. जैसे कि देखिए, आप फॉरेस्ट को अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इट विल एक्ट एज ए कार्बन कैप्चर, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, कार्बन स्टोरेज. साथ ही साथ आप हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. जितना ज़्यादा आप फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे, जितना एरिया आप कवर करेंगे, ओके, कल के रोज़ जो है इनके पास इतनी ताकत होती है फॉरेस्ट के पास कि वो अर्थक्वेक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फ्लड्स को रोक सकते हैं, राइट. एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं. उसके साथ साथ फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको देते हैं. एंड ओवरऑल मिशन हैज़ गोल टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टू 5 मिलियन हेक्टार्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट. देखते हैं आगे चलकर किस तरह से और टारगेट से शो करने वाले हैं. सो वाई इज आसाम रेडियो कॉलरिंग एलिफेंट्स? Recently, wild elephant was radio collared for first time in the Assam Sonitpur district by the State Forest Department in collaboration with NGO World Wildlife India. Okay, तो क्यों किया जा रहा है वैसा? तो joint initiative is being described as a step to study and mitigate human-elephant conflict in the state. Experts says the exercise is challenging and even run the risk of having low success rate. Yet the Forest Department is planning to collar at least 5 elephants in high conflict habitats in coming months. तो एनिमल्स जो हाथी होते हैं उनको गले में एक रेडियो कंट्रोल दे दिया जा रहा है दोस्तों. ओके, रेडियो कॉलर जिसे हम कहते हैं. ये आपको GPS एनेबल्ड कॉलर्स रहेगा दैट रिले इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिफेंट्स वेयर अबाउट्स कहाँ पे है. ओके, दे वे रफली 8 kg एंड आर फिटेड अराउंड द एलिफेंट्स नेक. सो अकॉर्डिंग टू WWF ब्लॉग, कॉलरिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग suitable candidate, generally adult elephant, darting it with a sedative and fitting a collar around elephant's neck before animal is revived. Additionally, the team also attaches an accelerometer to the collar to understand exactly an elephant is doing at any given time. Running, walking, eating, drinking, क्या कर रहा है, ये सारा कुछ इसको ट्रैक करने के लिए लगाया गया है. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्टिव्स आर टू फोल्ड. ओके, याद रख लीजिए. द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द GPS वुड हेल्प अस ट्रैक एंड स्टडी द मूवमेंट पैटर्न्स ऑफ द हर्ड. इसके हिसाब से आप जो है स्टेप्स ले सकते हैं ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, राइट. एंड दे वुड बी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ड्राइविंग द कॉन्फ्लिक्ट, क्या रीज़न है जो कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं इतने दिनों से. ओके, द सेकंड ऑब्जेक्ट इज इंसिडेंटल. द कॉलर्स वुड सर्व एज ए अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इफ पीपल नो विच डायरेक्शन एलिफेंट इज मूविंग दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ओके, एक वार्निंग सिस्टम भी आपको दिया जा रहा है. नेक्स्ट, सो दिस एक्सरसाइज वर्थ इट. देयर वर रिस्क एंड सक्सेस रेट वाज लो. देयर हैज़ बीन नो बेटर मैकेनिज्म. बट देखते हैं लॉन्ग टर्म पैटर्न को स्टडी करने के लिए, लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करने के लिए इस तरह का रेडियो कॉलरिंग एक्सरसाइज किस तरह से मदद करेगा हमारे ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में. ओके, so let's move on. Our next topic is art and culture. This is very important. Okay, so we are going to cover all these topics which are in news in the last 1 year.
So there are high chances to be asked in upcoming examination. So let's start. तो पहला टॉपिक हमारा लंगा मंगनियार हेरिटेज. लंगा मंगनियार हेरिटेज. The ballads, folklore and songs of the Langa Manganiyar artist are being preserved through an initiative for documentation and digitization. What are the key points? The project is aimed at saving the rapidly disappearing narrative tradition of these communities. Okay. The Jodhpur-based Rupayan Sansthan has extended support to initiative taken by the Archive and Research Center for Ethnomusicology at the American Institute of Indian Studies in the research project. Okay. तो जोधपुर में रूपायन संस्थान जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया इन कोलैबोरेशन विद दिस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़, ताकि इस नैरेटिव ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर पाएँ दोस्तों. एंड हु आर द लंगन्स एंड मंगनियार्स? द लंगास एंड मंगनियार्स आर हेरिडिटरी कम्युनिटीज ऑफ द मुस्लिम म्यूजिशियंस residing mostly in the western Rajasthan, Jaisalmer and Barmar district in Pakistan, Taparkar and Sangrar district in Sindh. The iconic and internationally acclaimed folk artists have been hit hard by COVID-19 pandemic. COVID-19 की वजह से जो है इनको बहुत बड़ा मार पड़ा है. Apart from the pandemic, the vital heritage is also facing a threat from changes in patronage and increased urbanization in this district. The music of two marginalized community who were supported by wealthy landlords and merchants before independence form a vital part of the Thar desert cultural landscape. Next important topic is Tamira-Barani civilization. A carbon dating analysis of rice with soil found in a burial urn at Sivakalai in Thoothukudi district of Tamil Nadu has yielded the date of 1155 BC, indicating that Tamira-Barani civilization dates back to 3200 years. Okay, Tamira-Barani civilization जो है 3200 साल पुराना है दोस्तों. Okay, recently जो एक burial urn मिला था हमको शिवाकलाई at Thoothukudi district of तमिलनाडु में. What is Tamira-Barani river? Tamira-Barani or Tamra-Parni or Parunai is a perennial river that originates from the Agastya Kudam peak of Putugai hills of Western Ghats. तो तमिरा-बरानी जो एक रिवर थी, रहा करती थी, पेरिनियल रिवर है जो कि अगस्त्य और कुदम पीक ऑफ पुतुगाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है दोस्तों. तो वहाँ पे तमिरा-बरानी सिविलाइजेशन बसता था 3200 साल पहले का, क्योंकि वहाँ पे हमको बरियल अर्न मिला है. ओके, राइस जो वहाँ पे एनालिसिस किए गए थे तो हमको उससे पता चला. क्लियर. So it flows through the Tirunelveli, Thoothukudi district of Tamil Nadu, state of southern India, into the Gulf of Mannar. It was also called Tamra-Pani river. History की बात कर लेते हैं. In many name, derivation of the तान पुराने include Tamra-Pani, Tamir-Barani, Tamira-Varuni. ये तरह तरह के नाम हैं जो तमिलियन नेम्स इसको आप कह सकते हैं. और इन्होंने अपने मेंशंस किए हैं क्लासिकल तमिल पोइट्स में अबाउट द संगम तमिल लिटरेचर में भी इसके बारे में जिक्र रहा था. एंड रिकॉग्नाइज एज ए होली रिवर. ओके, इस रिवर को जो है होली रिवर माना जाता था इन संस्कृत लिटरेचर, पुराणास, महाभारत, रामायण में. और यहाँ पे जो है अर्ली पांड्यन किंगडम बसा हुआ करता था. ट्रेड करते थे लोग, फिशरीज करते थे यहाँ पे. द मूवमेंट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द फेथफुल ट्रेड मर्चेंट्स एंड टॉडी टैपर्स फ्रॉम तम्रा-पानी रिवर टू नॉर्थ वेस्टर्न श्रीलंका लेड टू शेड अपलेशन. एंड वन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट द रिवर इज, यहाँ पे तम्रा-पानी महात्म्यम है दोस्तों. इट हैज़ मेनी एशियन टेम्पल्स अलॉन्ग इट्स बैंक. ओके, तम्रा-पानी महात्म्यम इज नथिंग बट इट्स ए collection of the temples, Asian temples along its bank. A hamlet known as Apang Coil is located on the northern side of the river. यहाँ पे एक hamlet भी आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है Apang Coil, is located on the northern side of the river. What is the significance of carbon dating? So this has provided evidence that there were city civilization in the South India as long as 3200 years ago, later part of Indus Valley civilization. Carbon dating की मदद से आप उसको पता लगा सकते हैं. तो नेक्स्ट देख लेते हैं Egypt plan to restore Cairo. So Egypt plans to restore Cairo. Egyptian is pushing ahead with a new project to restore historic Cairo, a sprawling but now rapidly crumbling 1000-year-old heritage site home to many a tale in 1001 Arabian Nights. What are the key points? The plan aims to revitalize and promote Cairo as a tourist attraction while the government prepares to move a futuristic new capital in the desert. It gives a fresh impetus to efforts by the professional architects and restorers जो भी रहते हैं ना, ताकि ओल्ड बिल्डिंग्स वहाँ पे रिस्टोर कर पाएँ, उनको बचा पाएँ. ओके, and the plan also involves converting several of the city विकालास जिसे कहते हैं हम into boutique hotels. ओके, और उसको यूज़ में लाना चाहती है गवर्नमेंट वहाँ के, ताकि रिनोवेट करके ओके वहाँ से रेवेन्यू कमाना चाहती है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा गुलाबी मीनाकरी. गुलाबी मीनाकरी, बनारस गुलाबी मीनाकरी गिफ्ट्स फॉर प्रेजेंटेड टू US प्रेसिडेंट कमला हैरिस and Australian Prime Minister Scott Morrison by Prime Minister Narendra Modi
ड्यूरिंग हिज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या था? बनारसी गुलाबी मीनाकारी गिफ्ट्स। तो ये क्या है देख लीजिए। देखिए, मीनाकारी ऑल्सो नोन एज एनामलिंग इज आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग मेटल सर्फेस बाय मिक्सिंग मिनरल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। एक एनामलिंग है दोस्तों, एक आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग है। मेटल सर्फेस को क्या करते हैं लोग? डेकोरेट करते हैं। द प्रोसेस इज ऑफन यूज्ड ऑन कुंदन। अंडर दिस बिटवीन द स्टोन एंड द माउंट ऑन वन साइड ऑफ आर्टिकल देयर इज अ गोल्ड लेयर इनले ऑफ प्रीशियस जेम्स, okay, while other side of the layer will made up with the Meena technique. The मीनाकारी ऑफ द वाराणसी इज ए पार्ट ऑफ इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, और जीआई टैग भी दिया गया था इसको 2015 में, वाराणसी का हिस्सा है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री की बात करें, मीनाकारी वर्क बिगेन इन पर्शिया। पर्शिया में जो है शुरुआत हुई थी इसकी, एंड वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया थ्रू मुगल इन्वेडर्स। नेक्स्ट, राजा मनसिंह ऑफ अंबर was instrumental in establishing the skilled craftsmen whom he brought from Lahore. Today Jaipur is a center of मीनाकारी वर्क। गुलाबी मीनाकारी ऑफ वाराणसी क्या होता है? इन द स्ट्रीट ऑफ वाराणसी, पक्का महल, भैरव गली, आशा भैरव गहगट, वर्क हैज बीन डन ऑन पिंक एनामल फॉर मेनी जनरेशंस। Artisan do the work of enameling pink on silver and gold also by using solid colors at certain temperature. The work of मीनाकारी was initially done only on gold. अभी जो है सिल्वर और कॉपर पे भी काम किया जा रहा है। ये लोग जो है पिंक कलर यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे गुलाबी मीनाकारी नाम रख दिया गया। नेक्स्ट, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एनुअली द इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज होस्टेड इन शिलोंग। कहाँ पे होती है ये? शिलोंग, मेघालय में, यूजुअली इन द मिड नवंबर, ऑल्सो नोन एज प्रूनस सेरासोइडिस। प्रूनस सेरासोइडिस। The cherry blossom are considered a gift from the Himalayas. They usually grow across the east and west Khasi hills. Next है Aharbal festival. The first ever Aharbal festival was held in Kulgam district of Jammu and Kashmir recently with an aim to promote tourism, especially at Aharbal waterfall as a tourist destination. The waterfall is a popular tourist site in South Kashmir. Next, reviving Namda craft. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched 2 pilot projects with a view to revive and catalyze the traditional Namda craft and upskill in the artisan weavers of नमदा क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, जो कि कश्मीर का एक पॉपुलर टूरिस्ट, सॉरी नॉट टूरिस्ट साइट, द नमदा क्राफ्ट जो है एक प्रॉपर क्राफ्ट है कश्मीर का, जो वहाँ के वीवर्स मनाते हैं। द प्रोजेक्ट और रिवाइवल ऑफ नमदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर इज अ स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सभी लोग जानते हैं ना, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है 3.0, ताकि आर्टिशंस को, जो भी वीवर्स हैं, उनको अपस्किलिंग की जा रही है, उनको फंडिंग दी जा रही है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर। तो उसी के तहत नमदा क्राफ्ट को भी बचाने की बात की गई। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फेल्टिंग द वूल इंस्टेड ऑफ वीविंग, मेनी लेयर्स ऑफ वूल आर मिंगल्ड टुगेदर व्हेन रग इज डेकोरेटेड। नेक्स्ट है हमारा अभिधम्मा डे 2021। सो व्हाट इज अभिधम्मा डे 2021? ऑन October 20, 2021 द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री and the International Buddhist Confederation in association with government of UP organized Abhidhamma Day at Kushinagar, the final resting place of Gautam Buddha. The day marks the end of 3-month rainy retreats, Varshavas or Vassa, for the Buddhist monks and nuns, during which they stay at one place and pray. According to widely held belief, this is the day when the Lord Buddha came back to earth from heaven. याद रख लीजिए. He is believed to have gone to the heaven to teaching Abhidhamma Pitaka. Next, Siu Kafa Divas, Assam दिवस दोस्तों। On 2nd December, Assam celebrated Siu Kafa Divas to commemorate the advent of first king of Ahom kingdom in Assam. तो Siu Kafa, a Thai prince originally from present-day Mong Mao Yunnan province of China, was the founder of Ahom kingdom and the architect of Assam that existed for nearly 600 years. तो इसीलिए वहाँ पे असम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू ऑनर तांतिया बिल। ओके, पटल पानी रेलवे स्टेशन इन इंदौर विल बी रीनेम्ड एज अमर क्रांतिकारी तांतिया बिल रेलवे स्टेशन आफ्टर ए लोकल फ्रीडम फाइटर। तो क्यों ऐसा किया गया? सो ऑन 27 नवंबर 2021 क्रांति सूर्य गौरव कैलाश यात्रा वॉज लॉन्च फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर जनक तांतिया मामा बरो दाहिर विलेज ऑफ तहसील बंदाना इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों कहाँ पे? खांडवा डिस्ट्रिक्ट। द होली सॉइल ऑफ तांतिया मामा's बर्थ प्लेस विल बी फिल्ड विद कलाश एंड वर्शिप्ड। नेक्स्ट जो है, तांतिया इज हेल्ड एज वन ऑफ द रेविशनरी हु वेज्ड एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर 12 years। और इनका जो जन्म है वॉज बोर्न इन 1840 इन बदादा विलेज अंडर द ईस्ट नेबर नाउ नोन एज खांडवा इन मध्य प्रदेश। ओके, सो गोइंग बाय ब्रिटिश अकाउंट्स ऑफ द टाइम ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज क्रिमिनल बट वॉज कंसिडर्ड एज इंडियन रॉबिन हुड बाय इंडियंस। दोस्तों ब्रिटिश लोग इनको क्रिमिनल कहा जाते थे, बट इंडियन इनको रॉबिन हुड कहा जाता था दोस्तों। ओके, ही यूज्ड टू प्लंडर द ट्रेजर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द वेल्थ ऑफ देयर फॉलोअर्स, और गरीब लोगों में बांट दिया जाता था।
He was put behind by the bars by British government twice. He escaped and continued the rebel activities. Okay. तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कनका दासा जयंती ऑन 22 November 2021. कनका दासा जयंती was celebrated in Karnataka to pay a tribute to 15th century poet, saint, social reformer Sri Kanaka Dasa. Kanaka Dasa and other Dasas of Bhakti movement like Purandara Dasa, Vijay Dasa, Gopala Dasa composed and sang kirtans in praise of God Vishnu. याद रख लीजिए. The kirtans sung by Dasas are also known as Dasa Sahitya और देवरा नामास इन कन्नड़ा लिटरेचर. ये इंपॉर्टेंट है. जो कीर्तन ये दासास गाया करते थे उस वक्त उसको क्या कहा जाता था? दासा साहित्य एंड देवरा नामस कन्नड़ा इन लिटरेसी. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. रानी गैदुलु ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की बात करें ऑन 22 November 2021 होम मिनिस्टर अमित शाह लेड फाउंडेशन द स्टोन ऑफ रानी गैदुलु ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन मणिपुर. Okay, the museum will come up at Luangko village in Manipur, Tamlengong district. Gaidilu was a Naga spiritual and political leader which revolt against the British rule in India. इनको 1932 में अरेस्ट कर दिया गया था एट एज ऑफ 16 एंड वन सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट. वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको टाइटल दिया था रानी. दोस्तों याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. शी वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण ऑल्सो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, क्वीन ऑफ वाराणसी रिटर्न्स होम आफ्टर ओवर 100 years. चलिए, द आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा रिट्राइव्ड फ्रॉम कनाडा was recently installed in Kashi Vishwanath Temple, Varanasi on 15th November 2021. The 18th century idol depicts Annapurna carrying a bowl of food in one hand and a spoon in other hand. Annapurna idol carries a huge significance for Hindus. आप सभी लोग जानते हैं अन्नपूर्णा देवी. ओके, ये हिंदूस रिलीजन में बहुत ही सिग्निफिकेंट है इनका रोल. शी वर्शिप नॉट ओनली एज गॉडेस ऑफ फूड एंड नरिशमेंट बट ऑल्सो एज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस पार्वती. ओके, द कंसर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा. तो इसलिए इनको क्वीन ऑफ वाराणसी भी कहा जा रहा है. द सिटी सेड टू बी शिवास होम. द गॉडेस हैज़ ए टेम्पल डेडिकेटेड टू हर इन द वाराणसी, दैट इज अन्नपूर्णा देवी मंदिर. इनके लिए स्पेशल मंदिर वहाँ पे बन दी गई. ऑलरेडी है वहाँ पे, डेडिकेट किया गया है. एंड द स्टैचू वॉज स्मगल्ड आउट ऑफ इंडिया बाई नॉर्मन मैकेंजी, ए कैनेडियन लॉयर एंड ए पैटर्न ऑफ आर्ट्स हू टुक द स्टैचू बैक टू इंडिया होम फ्रॉम हिज 1913 ट्रिप टू इंडिया. ओके, तो इन्होंने लेके चले गए थे. अब फाइनली वी हैव रिट्राइव फ्रॉम कनाडा. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, राजा संग्राम शाह अवार्ड. फॉर द वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विल इंस्टीट्यूट राजा संग्राम शाह अवार्ड. दोस्तों यहाँ देख लीजिए, जो भी ट्राइबल आर्ट कल्चर में अच्छा नाम कमाते हैं उनको राजा संग्राम शाह अवार्ड दिया जाता है. राजा संग्राम शाह कौन थे? वॉज ए किंग ऑफ गरहा किंगडम ऑफ गोंडवाना इन द प्रेजेंट डे ऑफ मध्य प्रदेश, बिलोंग टू द गोंड डायनेस्टी. इनका जो इनिशियल नेम था वो अमन दास था दोस्तों. ओके, एंड विच ही चेंज्ड आफ्टर कॉन्करिंग 52 फोर्ट्स. द चौरागढ़ फोर्ट जो नरसिंहपुर में है वॉज बिल्ट इन हिज ऑनर फॉर कॉन्करिंग 52 फोर्ट्स. ही नेवर डिफीटेड इन हिज ओल्ड लाइफ. जिंदगी में कभी हारे नहीं ये लोग. ओके, संग्राम शाह राजा कभी हारे नहीं. संग्राम शाह वॉज बेस्ट नोन एज पैटर्न ऑफ आर्ट्स लिटरेचर. ही हैड ए ग्रेट नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड रसत्नमाला वॉज रिटन बाय हिम. क्या लिखा था इन्होंने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, रसत्नमाला. हिज एल्डेस्ट सन दलपत शाह मैरिड रानी दुर्गावती. तो जो कोई भी इन द फील्ड ऑफ ट्राइबल आर्ट्स और कल्चर में अच्छा परफॉर्म करेगा, ओके, अचीवमेंट्स लाएगा, तो उनको राजा संगम शाह अवार्ड देने का घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा. नेक्स्ट, 121st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अशफाक उल्ला खान. ऑन 22 October 2021 मार्क द 121st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्ला खान. ओके, क्योंकि ही इज नोन फॉर 1925 ककुरी ट्रेन इंसिडेंट विच ही हेडेड अलॉन्ग विद द राम प्रसाद बिस्मिल, द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो HRA है, and during India's freedom movement. Khan was put to death by hanging on 19 December 1927 at Faizabad jail. नेक्स्ट है हमारा काशी उत्सव. ओके, 16 से 18 नवंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है. 3-day फेस्टिवल काशी उत्सव वॉज हेल्ड इन वाराणसी टू सेलिब्रेट द क्लासिक हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ काशी. द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड द एनुअल द क्लासिक हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ काशी, स्पेशली द सेंचुरीज ओल्ड ल्यूमिनरीज. ओके, गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, ओके, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद एंड श्री जयशंकर प्रसाद. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्र रक्षा संपन्न पर्व. 3-day राष्ट्र रक्षा संपन्न पर्व वॉज हेल्ड इन झांसी उत्तर प्रदेश फ्रॉम 17 to 19 नवंबर एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन. और 19 नवंबर वॉज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, द एपिटम ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड ग्रेट नेशनल आइकॉन ऑफ राष्ट्र रक्षा. ओके, नेक्स्ट है हमारा भास्कर पदा, ए लूनी सोलर कैलेंडर. रिसेंटली द असम गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट भास्कर पदा
ए लूनी सोलर कैलेंडर विल बी यूज्ड एज ऑफिशियल कैलेंडर इन एडिशन टू सखा। ओके, सखा एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर तो हम लोग फॉलो करते आ रहे थे, बट असम गवर्नमेंट ने एक नया कैलेंडर इसको ज्वाइन कर लिया है, इसका नाम है भास्कर अब्दा, जो कि लूनी सोलर कैलेंडर है। The local calendar is counted from the date of accession of the Bhaskara Varman in 7th century ruler of Kamrup. Okay. Bhaskar Abda began the Bhaskara Varman was a crowned ruler of the Kamrup kingdom. He was a contemporary and political ally of northern Indian ruler Harsha Vardhana. Okay. So unlike the Gregorian where a day starts at the midnight, the Assam calendar begins and ends at sunrise over 24 hours. याद रख लीजिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप सभी लोग जानते हैं 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, बट असम का कैलेंडर बिगिंस एंड एंड्स ओवर 24 आवर्स तक, इसके बाद ये लोग नया दिन शुरू करते हैं। वाइल द ग्रेगोरियन गोज बाय सोलर साइकिल, द सखा एंड भास्कर ऑफ द यूज लूनी सोलर सिस्टम, जो कि मून के हिसाब से ये लोग अपनी तारीख को डिसाइड करते हैं। द गैप बिटवीन भास्कर ऑफ द एंड ग्रेगोरियन इज 593 ईयर्स। याद रख लीजिए। कैलेंडर्स देख लेते हैं। सोलर कैलेंडर बेस्ड ऑन द सीजनल ईयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 365 ओके एंड 1.5 डेज, अब जैसा 1/4 डेज। इट टेक्स टाइम टू अर्थ revolve around the sun. A lunar calendar based on year that contains a synodic moons, that is complete cycle of phases of the moon. And this lunisolar calendar month is a month, but the solar years were used in early Middle Eastern civilization and Greece. तो पहले ईस्टर्न सिविलाइजेशंस में ग्रीस में इस कैलेंडर्स को यूज़ किया जाता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वंगाला फेस्टिवल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द एनुअल वंगाला फेस्टिवल ऑल्सो कॉल्ड 100 ड्रम फेस्टिवल was recently observed in Meghalaya. Usually this celebration lasts for 2 days, but sometimes it can continue for a week also. It is the most important festival in Garo tribe, and Wangala is a post-harvest festival, and the Garos give thanks to Messi Saljong, the sun god, for blessing the people with a rich harvest. Clear? तो ये गैरो ट्राइब वालों की बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं रानी कमलापति, द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल। सो रिसेंटली हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, तो ये जो है नाम रीनेम कर दिया गया है, अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। रानी कमलापति कौन थे? गोंड क्वीन थे एंड द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल। कमलापति वॉज अ डॉटर ऑफ राजा कृपाल सिंह ऑफ ए प्रिंसेस स्टेट ऑफ सकलपुर सीहोर। शी इज़ नोन फॉर हर इंटेलिजेंस, करेज एंड शी वॉज एन एक्सपर्ट हॉर्स राइडर, रेजलर ऑल्सो। ओके, यहाँ देख लीजिए। एंड शी फॉट मेनी वॉर्स विथ हर फादर मिलिट्री, और इनकी खुद की एक फीमेल टीम थी। शी प्रोटेक्टेड हर किंगडम फ्रॉम इन्वेडर्स। ओके, रानी कमलापति, इनका जो ब्याह है वो निज़ाम शाह जी से हुआ था, द सन ऑफ सूरज सिंह शाह हु reigned द स्टेट ऑफ गिन्नौरगढ़। किंग निज़ाम शाह built over 7-story palace in Bhopal as a token of love for Rani Kamlapati in 1780. After Rani Kamlapati dead in 1723, the ruler of Nawab started in Bhopal, led by दोस्त मोहम्मद खान। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जनजातीय गौरव दिवस। इसको भी मैंने आई थिंक प्रीवियसली पढ़ा है। इट इज़ अ नेम गिवन टू 15 नवंबर 2021 बाय द यूनियन कैबिनेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड 15 नवंबर को हम हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ओके, क्योंकि ग्रेट ट्राइबल वॉरियर बिरसा मुंडा जी हैं और डिफरेंट जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं जो ब्रिटिशर से लड़े थे, उनके खिलाफ जो भी इनके नेम पे एक ट्रिब्यूट शेयर करने के लिए इस तरह का दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा रामवान गमन टूरिस्ट सर्किट। और अक्टूबर 7, 2021 Chief Minister of Chhattisgarh inaugurated the first phase out of Ramwan Gaman Tourist Circuit project in Chhattisgarh to develop places related to the exiled landlord of Lord Shri Ram. Okay, he also inaugurated renovation and beautification work of Mata Kaushalya Temple Complex at Chandakuri, okay, which unveiled 51 feet high statue of Lord Shri Ram. Chhattisgarh has its own identity, okay, in the whole world as a maternal grandmother home for Lord Shri Ram माना जाता है छत्तीसगढ़ को। And Ramwan Gaman tourism circuit of about 2,260 kilometers is being developed from Har Chowka in Sitarmati of Korea district to Ramaram in Sukma. कंप्लीट एक राम सर्किट बनाया जा रहा है। जो भी आप देखना चाहते हैं तो एक सर्किट में आपको लेके जाएंगे। नेक्स्ट, राम वन गमन टूरिज्म सर्किट प्रोजेक्ट इंक्लूड्स सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिव नारायण, ओके, तुर्त्रिया, चंदकुरी, राजिम, सिहावा, सप्तार्शी, रामाराम, ये सारा कुछ इंक्लूड रहता है। दोस्तों सारा कुछ आप देख सकते हैं। एक पिलग्रिमेज टूरिज्म साइट जहाँ पे एक शॉट में आप इस सारे प्लेसेस को देखकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया वंदे भारत नृत्य उत्सव। द कल्चर मिनिस्ट्री विल होल्ड अ वंदे भारतम नृत्य उत्सव एंड ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉम्पिटिशन की बात करें इज टू सेलेक्ट द डांसर हु विल परफॉर्म ड्यूरिंग द कल्चरल प्रोग्राम एट रिपब्लिक डे पैरेड 2022। सो वंदे भारत ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन विल हेल्ड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन एंड इंटर जोन, नेशनल लेवल्स पर किया जाता है। द पार्टिसिपेंट कैन परफॉर्म इन 4 कैटेगरीज। क्लासिकल हो गया, फोक हो गया,
ट्राइबल हो गया और फ्यूजन हो गया दोस्तों। इसमें से टॉप परफॉर्मर को आपको रिपब्लिक डे परेड में परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा, इनफैक्ट हो चुका है अभी। सो नेक्स्ट है हमारा बिरसा मुंडा म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन जनवरी ऑन 15 नवंबर 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय शाह स्मृति उद्यान एट द सेंट्रल ओल्ड जेल प्रीमिसेस इन रांची। नेक्स्ट है हमारा श्रीनगर इज अ न्यू यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज ऑफ इंडिया की बात करें, श्रीनगर हैज बीन सेलेक्टेड अमंग 49 सिटीज वर्ल्ड वाइड टू जॉइन यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क। अर्लियर अदर इंडियन सिटीज गॉट द डिस्टिंक्शन, चेन्नई एंड वाराणसी हो गया, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। ओके, डिफरेंट कैटेगरीज में इनको नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ दिया गया है, तो इस बार श्रीनगर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है दोस्तों, ताकि द मेन एम इज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू इनोवेटिव थिंकिंग एंड एक्शंस। नेक्स्ट, कर्नाटका सेलिब्रेट ओनाके ओबावा जयंती। द कर्नाटका गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड ओनाके ओबावा जयंती ऑन November 11 across the state on occasion of 18th century women warriors' birthday. Okay. So Onake Obawa is known and celebrated for valor and bravery as she took on the soldiers of then ruler of Mysore Hyder Ali when they attacked the Chitradurga fort, killing the soldiers who sneaked into the fort one by one as they came through a small space between the boulders with a wooden grate pounding stick Onake with the iron covered base। दोस्तों याद रख लीजिए, ओनाके क्या है, एक आयरन कवर्ड बेस होता है। ओबावा अल्टर हर सोल्जर्स अबाउट द अटैक एंड सेव द किंगडम बट एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन लाइफ। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुजंगल इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2022। तमिल फिल्म कुजंगल हैज़ बीन अनाउंस्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। इसके साथ साथ और कौन सा ऑफिशियल एंट्री हुआ था बता पाएंगे आप मुझे? तो नेक्स्ट है शाहजी एन करुण द चेयरपर्सन at the 15 member of selection committee set up by Film Federation of India made the announcement. Directed by debutant director P.S. Vinod Raj, Kusangal tells the story of alcoholic father and his son and the journey to bring back the mother who has left the home. The film will compete for the best international feature film at 94th Academy Awards to be held in 27 March in 2022. Earlier this year, Kusangal had also won the prestigious Tiger Award, Top Honor and 50th edition of the International Film Festival Rotterdam this year. Next, archaeological finds at Khera, Jalalpur. Okay, so recently residents of Khera Jalalpur spotted some heads of some statues and remains of temples. So the village of Khera Jalalpur is situated on the eastern bank of river Ganga in Badaun district of Uttar Pradesh. कहाँ पे है ये खेरा जलालपुर? ये आपको गंगा के किनारे है दोस्तों, ईस्टर्न बैंक एट बदाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। These sites are potential to quite rich in terms of archaeological remains of the late Gupta period on the even earlier than that. The available statue heads and bricks suggest that they belong to the post-Gupta period, that is 700 to 800 AD. And most of the religious structure in the era of the post-Gupta period shows a similar pattern of destruction. Who destroys the structure in a period that is unknown? कौन डिस्ट्रॉय किया इसका कुछ कोई पता नहीं चला है, बट हाँ जिस तरह से एक पैटर्न हमको मिला है जो टेम्पल्स को, उनके आइडल्स को जो डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे मिला है। Archaeologists say that Badaun, which exists at bank of river Ganga, has been a rich place from an archaeological point of view, has ancient highways that connect eastern part of country to the western part of Afghanistan. This is very important. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं उड़ीसा एंड थोड़ा बाकी है अभी है। चलिए, ड्यूरिंग द रूल ऑफ ममलूक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट बदाऊन गेंड ए स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड इल्तुतमिश रोज टू प्रोमिनेंस इन द आइबक सर्विस दोस्तों। उसके बाद बदाऊन को बिकम द कैपिटल ऑफ दिल्ली सुल्तानेट फॉर 4 years। ड्यूरिंग इल्तुतमिश रूल को बदाऊन को कैपिटल की तरह भी बनाया गया था। नेक्स्ट, उड़ीसा एंड बुद्धिस्ट सर्क्यूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी, एक मिनट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज सॉट द पर्सनल इंटरवेंशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जी किशन रेड्डी टू इंक्लूड ओडिशा इन द प्रपोज्ड बुद्धिस्ट सर्किट अंडर द सेंटर स्वदेश दर्शन स्कीम। अंडर द स्कीम, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैज सैंक्शन 5 projects worth more than 325 crore rupees for Buddhist circuit development in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat and Andhra Pradesh दोस्तों। ओके, सो ओडिशा हैज ए स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट हेरिटेज, आप सभी लोग जानते हैं। ड्यूरिंग द 8th to 10th century अंडर भौमिकारा डायनेस्टी बुद्धिज्म वाज कंसिडर्ड एज ए स्टेट रिलीजन ऑफ ओडिशा। Two of Lord Buddha's first disciples, namely Tapasu and Balika, hailed from Odisha. This is also very important. Emperor Ashoka has patronized the spread of Buddhism both in state and beyond. इन्होंने श्रीलंका तक पहुंचाया था। बुद्धिस्ट साइट जो है उड़ीसा, क्या कौन से धौलागिरी हो गया, ललितगिरी हो गया, उदयगिरी हो गया, रत्नागिरी हो गया और जिरांग हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माउंट हैरियट रीनेम्ड एज माउंट मणिपुर। To honor the unsung heroes from Manipur during Indian freedom struggle, Mount Harriet has been renamed as a Mount Manipur, याद रख लीजिए। Mount Harriet is a part of Mount Harriet National Park located in Andaman Nicobar Island.
तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ये माउंटेन आपको मणिपुर में मिलेगा बोल के। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है। पहले माउंट हेरियट इसका नाम था, अभी वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम इस तरह से रखा गया है। माउंट हेरियट जो है 383 मीटर्स थर्ड लार्जेस्ट पीक माना जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड में, नेक्स्ट टू द सैडल पीक। Manipur had a significant contribution resisting the British to entire northeast during 1857 and Manipur was the only state that had implemented its own constitution दोस्तों। और मणिपुरी was a hero, युवराज तिकेंद्रजीत एंड जनरल तंगन वर पब्लिकली हैंग्ड इन फिदा इम्पाल में पब्लिक इनको हैंग कर दिया गया था। द ब्रिटिश थॉट दैट बाय हैंगिंग देम दे हैड क्रश्ड द फ्रीडम मूवमेंट बट इट नॉट हैपन। आफ्टर दैट महाराजा कुलचंद्र ध्वजा सिंह एंड 22 फ्रीडम फाइटर्स वर सेंट टू कानापानी। ओके, उसके बाद जो है इनको माउंट हेरियट में रखा गया, तो इसीलिए अभी इसका नाम माउंट मणिपुर रख दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आदि शंकराचार्य स्टैचू इनॉग्रेटेड इन केदारनाथ। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज अनवील्ड 12 फुट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य एट केदारनाथ। अरुण योगीराज इज अ स्कल्पचर ऑफ दिस स्टैचू दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एंड ही वॉज बोर्न ऑन द 11th May 788 AD एट कलाडी नियर कोचिन। ही प्रोपोनेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता एंड ही रिवाइव्ड द हिंदुइज्म इन इंडिया टू बुद्धिज्म वॉज गेनिंग द पॉपुलैरिटी। जब बुद्धिज़्म उस ज़माने में बहुत ही ज़ोरों ज़ोर से बढ़ रहा था तो उन्होंने हिंदुज़्म को फिर से रिवाइव करने की बात की थी आदि शंकराचार्य जी ने। एंड ही एस्टैब्लिश 4 मथास, ज्योतिर्मथा इन बद्रीनाथ उत्तराखंड, शारदा पीठा इन द्वारका गुजरात में है, और श्रीरंगा माथा कर्नाटक में है, और गोवर्धना माथा ये पुरी में है दोस्तों। नेक्स्ट भद्राचलम एडेड IRCTC रामायण सर्क्यूट ट्रेन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। IRCTC की जो रामायण सर्क्यूट ट्रेन है उसमें नया प्लेस ऐड कर दिया गया भद्राचलम। भद्राचलम कहाँ है आपको तेलंगाना में है। ओके, रिसेंटली IRCTC रामायण सर्क्यूट ट्रेन में इसको इंक्लूड कर दिया गया एंड इट इज़ होम टू श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, दैट इज श्रीनगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो चेन्नई, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद इन सारे चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा घेर बैर द पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन इन कोलकाता दैट शोकेस 2 century of art in Bengal and was housed in building almost as old is shutting down after enriching the cultural landscape of the city nearly 2 years। घेर बैर जो है एक पॉपुलर म्यूजियम है दोस्तों, म्यूजियम एग्जीबिशन है जो कि बंगाल के आर्किटेक्चर को फ्लोरिश करने के लिए, ओके, उसको शोकेस करने के लिए वहाँ पे इस घेर बैर को बनाया गया है। एंड की पॉइंट्स, DAG म्यूजियम ए प्राइवेट एंटिटी रैन द शो इन कोलैबोरेशन विद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। The museum exhibition was inaugurated on 11th January 2022 at renovated currency building, which was built in 1833 and almost raised in 1996 में। Okay, गैर भैर at home and the world, इसका मतलब derived its name from the title of Rabindranath Tagore iconic novel, which later inspired Satyajit Ray to make a film by the same name, गैर भैर। तो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट दैट गॉट GI टैग रिसेंटली, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस तो फॉर शॉर्ट आपको एग्जाम में पूछता ही है। तो पहला है जुडीमा राइस असम। जुडीमा इज अ होम मेड राइस वाइन ऑफ असम। इट्स मेड फ्रॉम द राइस एंड सर्टन हर्ब एंड वाइडली पॉपुलर अमॉन्ग द दिमासा ट्राइबल्स। तो जुडीमा एक राइस वेराइटी है असम की, सॉरी नॉट राइस वेराइटी, इज अ राइस वाइन, होम मेड राइस वाइन, ओके, जो कि दिमासा ट्राइबल में बहुत ही पॉपुलर है and is inseparable from the social and cultural life of Dimasa. Judima is the first beverage from the northeast to get this honor. उसका बाद मंजूषा आर्ट बिहार, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रोल पेंटिंग, इसको कहा जाता है। मंजूषा आर्ट को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रोल पेंटिंग भी कहते हैं। द आर्ट इज प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस बाय मलाकार एंड कुंभाकार कैस्ट इन प्रेजेंट डे बिहार। जो मलाकार और कुंभाकार कैस्ट हैं ये लोग प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। और ये एक्चुअली मंजूषा आर्ट जो बहुत ही खूबसूरत रहता है, मैंने देखा है, इज अ सीक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी। अब स्टोरी को जो है पूरा पिक्चर्स में आपको प्रेजेंट किया जाता है। एंड मंजूषा आर्ट इज़ ए फोक आर्ट इन अंग रीजन, ओके, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दी फोकलोर ऑफ बिहुला बिनसारी बोल के हैं, वहाँ पे बेस्ड है। एंड मंजूषा आर्ट कैरेक्टराइज ए लाइन ड्राइंग आर्ट, इट कंटेन्स ओनली 3 कलर, पिंक, ग्रीन एंड येलो। याद रखिए कौन सा? पिंक, ग्रीन एंड येलो। नेक्स्ट हो गया हमारा पिथोरा हैंडीक्राफ्ट, गुजरात दोस्तों। पिथोरा आर्ट इज़ हाईली एनरिच फोक आर्ट इन द कल्चर ऑफ ट्राइब्स। कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा? गुजरात में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो पिथोरा आर्ट इज डन इन द होम्स ऑन द वॉल्स टू अपीज गॉड्स फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी and eradication of obstacles from the lives of tribals.
The art is practiced by Lakhara to paint the traditional pithora. Brushes are made from the bamboo shoots and bawal tree twigs, making cones from dry but tough खकरा leaves to hold colors. दोस्तों याद रख लीजिए, इनके जो ब्रशेस हैं वो भी जो है बैम्बू से बनाए जाते हैं, बैम्बू शूट से. The dry color powder is mixed in a cow's or goat's milk and then with distilled strain of mahudu, a local brew made from the fruit of mahudu tree, especially used for this pithora art. According to the Lakhara, the liquor act like a binder and make certain that color remain bright new and lost for many years. This is also very important. Next देख लेते हैं हरमल चिल्ली गोवा. हरमल चिल्ली derives its name from the area of cultivation Harmal, which is a coastal village in Parnam Taluk in North Goa district. दोस्तों important है. Okay. Harmal chili, also known as herbal mirsang in the local language, was one of the main varieties of chili introduced by Portuguese 400 years ago. चंबल, चंबा हो गया, चप्पल, चंबा चप्पल जो हिमाचल प्रदेश है उसको भी जीआई टैग दिया गया था. द इंट्रिकेटली एम्ब्रॉयडर्ड लेदर चप्पल्स मेड बाय हैंड एंड अडोर्ड विद गोल्डन एंड कलरफुल एम्ब्रॉयडरी. लाहौल knitted stocks and gloves, Himachal Pradesh. Lahol stocks and gloves are made up from indigenous wool sheet from a local sheep. Okay, a Laholi pair of stock is knit in parts using 4 double pointed needles. First the cuff is knit, second the leg, and the last is a heel. दोस्तों the upper part of the foot is knit using 8 colors into traditional eye-catching pattern, locally and called dashi, which comprise patterns composed by 7 or 8 types of motifs. Each dashi is laid out in a 4 or 5 rows in different colors. Okay. Next, once the front portion with the dashi is ready, the sole is built and the two other are joined. Clear? चलिए नेक्स्ट है कुटियाटूर मैंगो. दोस्तों कुटियाटूर मैंगो जो केरला का है, बहुत ही फेमस मैंगो है, इसको भी जीआई टैग दिया गया था. इट ए ट्रेडिशनल मैंगो कल्टिवेटर ऑफ कुतियातूर एंड नियर बाय ग्राम पंचायत ऑफ कन्नूर डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे मिलता है आपको? कन्नूर डिस्ट्रिक्ट. इवन दो दिस कल्टिवेटर इज मोस्टली पॉपुलर नोन एज कुतियातूर मैंगो, इट इज ऑल्सो नोन एज नाम्बियार मंगा. याद रखिए, नाम्बियार मंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मैंगो इज फेमस फॉर अपीलिंग ऑरेंज येलो कलर इन एडिशन टू द एक्सेलेंट टेस्ट एंड फ्लेवर, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया. नेक्स्ट है हमारा एडियाऊर चिल्ली. एडियाऊर चिल्ली केरला. एडियाऊर चिल्ली इज अ लोकल कल्टिवेटर ऑफ एडियाऊर अतनवाड़ मरक्करा इरम्बिलियम कलापंकचेरी एंड वलांचेरी पंचायत इन वलांचेरी ब्लॉक. ये चिल्ली आपको कहाँ पे कल्टिवेट किए जाते हैं? अतावनाड़ हो गया, मरक्करा हो गया, ओके, इरम्बिलियम हो गया, कलापंचेरी, ये वहाँ के गाँव के नाम हैं. उस एरियाज़ में जो वलांचेरी ब्लॉक के अंडर आती है वहाँ पे इसको उगाया जाता है. इट हैज़ बिन कल्टिवेटेड इन द ईयर फॉर एटलीस्ट 150 ईयर्स. दोस्तों एडियाऊर चिल्ली इज यूनिक कल्टिवेटर ऑफ दिस एरिया विथ वेरी लो पंजेंसी. याद रख लीजिए, घाट नहीं रहता है इसमें. The distinctness can be attributed to genetic makeup, the specific environmental and soil condition of the area, and the traditional method of this cultivation. Next है हमारा बालाघाट चिनोर राइस, मध्य प्रदेश का, जो कि बालाघाट ग्रोन अक्रॉस द बालाघाट इन मध्य प्रदेश. द राइस ब्रांड इज नोन फॉर इट्स स्पेशल अरोमा. बहुत ही अच्छी खुशबू आती है यहाँ से. ओके, इवन अनकुक्ड सॉफ्टनेस व्हेन कुक्ड विद अ डिलाइटफुल टेस्ट. नेक्स्ट हो गया अलीबाग व्हाइट ऑनियन, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का अलीबाग व्हाइट ऑनियन वॉज गिवन ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑन September 29, 2021. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सॉइल ऑफ अलीबाग तालुका हैज़ अ लो सल्फर कंटेंट. इसकी वजह से इनके पास जो है लो पंजेंसी रहती है, स्वीट टेस्ट रहता है, नो टीयर फैक्टर, प्याज काटने से आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि लो पायरुविक एसिड है, हाई प्रोटीन फैट फाइबर है, तो इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया. बिकॉज इट बूस्ट हेल्प इम्यूनिटी, हेल्प्स इन इंसोम्निया, ब्लड क्लीनिंग एंड ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम सबको क्यूर करता है दोस्तों. And local farmers have preserved the seed for over 2 centuries. The onion is also mentioned in Government Gazette published in 1883. Next हो गया हमारा तमेंगलोंग ऑरेंज, मणिपुर का. ओके, तमेंगलोंग ऑरेंज, इट इज़ यूनिक फ्रूट क्रॉप फाउंड मोस्टली इन द तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट विच contributes over 50% of the state annual production. मणिपुर इज फेमस especially for its well blended sweetness and acidic taste. ओके, और मणिपुर ऑरेंज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं एवरी डिसम्बर टू प्रमोट द ऑरेंज. नेक्स्ट हो गया हमारा हताई चिल्ली मणिपुर. दोस्तों इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेराइटीज ऑफ चिलीज with a distinct flavor, color and grown in Sirakhong village in Ukhrul district. कहाँ पे इसको उगाया जाता है? In the Sirakhong village in Ukhrul district. Sirakhong Hathai festival is observed in Manipur every August to promote this product. Next हमारा important GI tag product है मिजो जिंजर. Okay, मिजो जिंजर are famous for their high quantity of gingerol and volatile oil. And this ginger variety is produced using traditional eco-friendly and economical methods. उसके बाद नागा कोकुम्बर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा था. नागा कुकुम्बर इज रिकॉग्नाइज फॉर स्वीटनेस एंड यूनिक ग्रीन कलर. इसका ग्रीन कलर ही थोड़ा यूनिक सा रहता है. एंड दे आर जूसी, सॉफ्ट एंड स्वीट. दे आर ग्रोन कम्प्लीटली ऑर्गेनिकली. नागा कुकुम्बर आर काइंड ऑफ फ्रूट्स दैट डिफर इन टेस्ट, शेप एंड साइजेस विच आर अवेलेबल इन अदर एरियाज. और दे आर लो इन कैलोरीज बट हाई इन पोटेशियम. दोस्तों ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा सोजत मेहंदी. सोजत मेहंदी राजस्थान के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों.
okay, which is originated from the mehendi leaves grown in Sojat. It's fully natural, cultivated by rainwater for getting high lawson content in mehendi leaves. By drying the mehendi leaves, fragrant oils is also extracted. The leaves of mehendi plant bark trees are taken for the medicinal use. तो कई सारे यूजेस हैं, नॉट ओनली मेहंदी, आप इसको मेडिसिनल यूज़ भी कर सकते हैं, इसके सीड्स और रूट्स को, ओके, लीव्स को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे फ्रैगनेंट ऑयल भी बना सकते हैं, कई सारे इसके यूजेस हैं. नेक्स्ट है दल्ले खुरसानी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. सिक्किम फेमस रेड हॉट चेरी पेपर दल्ले खुरसानी is one of the hottest chili in the world. The amount of the heat in chilies is measured Scoville heat unit. Dalle Khursani has a range of 1 lakh to 3 lakh 50,000. Okay, and another pepper called Bhut Cholikia is grown in neighboring states of Arunachal Pradesh, Manipur, Assam and Nagaland. It has a range of 8 lakh 55,000 to 10 lakh 41,000. So Dalle Khursani is well known for its unique flavor and high pungency दोस्तों. It belongs to family Solanaceae and genus Capsicum. Next हो गया हमारा करापुर कलामगिरी पेंटिंग्स तमिलनाडु. Okay, Kalamkari paintings are done on a pure cotton cloth and predominantly used in temples for umbrella covers, cylindrical hangings and chariot covers दोस्तों. Okay, Kalamkari paintings are done in Karapur, in surrounding villages in Udyarapalam, in Ariyalur district, okay, और तिरुपन्नंदल एंड तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ज़्यादातर इस तरह के पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, ओके, जो कि अम्ब्रेला कवर्स हो, सिलेंड्रिकल हैंगिंग, इसके ऊपर ये लोग करते हैं दोस्तों. कलमकारी पेंटिंग एवॉल्व अंडर द पैटर्नेज ऑफ नायका रूलर्स इन द 17th सेंचुरी, ओके, जहाँ पे वुड कार्विंग स्किल को सिखाया जाता था और मदुराई को एक आर्ट सेंटर भी बना दिया था इन लोगों ने. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कलाकुरिची वुड कार्विंग तमिलनाडु. अगेन तमिलनाडु जीआई टैग. तो कलाकुरिची वुड कार्विंग्स आर यूनिक फॉर्म ऑफ वुड कार्विंग एंटाइटल द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्नामेंटेशन एंड डिजाइन डिराइव फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टाइल्स बाय क्राफ्ट्समैन. And Kalakuruchi wood carvings are mainly practiced in the Kalakuruchi, Chinnaselam and Tirukkovilur taluks in Kalakuruchi district. Kanyakumari clove, Tamil Nadu. It is also known for the unique qualities like high concentration of volatile oil content and aroma. Very, very important. It is cultivated at an elevation of 400 to 900 meter above the sea level in Western Ghats of Kanyakumari district. The hilly region is blessed with both good rains and sea coupled with the adequate sun rays. And next है हमारा भूतिया धन. ये भी important है, उत्तराखंड रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था. Bhutia Dhan hand knotted carpets is a unique form of hand knotted carpet that is woven in high altitude region of state of Uttarakhand दोस्तों. भूतिया ट्राइब फॉर द लाइवलीहुड पर्टिकुलर इन डिस्ट्रिक्ट उत्तराकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पे आपको इस तरह का हैंड नॉटेड कार्पेट्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड दे आर मेड अप ऑफ द प्योर वूल विद ए कन्वेंशनल डिजाइन पैटर्न इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल भूतिया कल्चरल थीम्स. नेक्स्ट द डिजाइन मोस्ट कॉमनली कंप्राइज जियोमेट्रिक पैटर्न्स विच गिव्स देम ए यूनिक एंड एलिगेंट अपीयरेंस. इनके पास एक यूनिक पैटर्न होता है जियोमेट्रिक, ओके, जो कि एक अलग अपीयरेंस देता है आपको. द शीप दैट प्रोवाइड द वूल आर रेड बाय दिस टाइप एट हाई एल्टीट्यूड. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट उत्तराखंड आईपन, ये भी उत्तराखंड का है दोस्तों. इस बार उत्तराखंड में भी कई सारे आपको जीआई टैग्स मिले हैं, ओके, बहुत सारे मिले. मैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. अब तक हमने भूतिया धन पढ़ लिया, उत्तराखंड आईपन हो गया. हेलिंग फ्रॉम द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, आईपन इज ए रिचुअलिस्टिक फोक आर्ट. क्या है ये? एक फोक आर्ट है दोस्तों. द एक्चुअल आर्ट इज डन इन द वाइट पेस्ट मेड अप ऑफ राइस फ्लोर. जो चावल के आटे से इसको बनाया जाता है आर्ट को. The art is frequent to floors and wall of puja rooms and entrance of the homes. It is created to memorialize the auspicious moments, festival, even rites carried out upon the death of a person. और it is locally ये माना जाता है कुमाऊं में. The art form ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको अगेंस्ट ईविल, शैतान के खिलाफ. चलिए नेक्स्ट हो गया मुंशियारी राजमा उत्तराखंड. ये भी उत्तराखंड का. कल्टिवेशन ऑफ मुंशियारी राजमा इज प्रोडोमिनेटली सीन इन जियोग्राफिकल रीजन ऑफ मुंशियारी इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. द ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मेथड हैव बीन प्रैक्टिस बाय विलेज कम्युनिटी फॉर डिकेड्स. कई सालों से ये लोग इसी तरह कल्टिवेट करते आ रहे हैं. द न्यूट्रिएंट डेंस नेटिव राजमा इज अ स्टेपल ऑफ इंडियन कुकिंग एंड द स्मॉल साइज किडनी बीन इज अ यूनिक एंड सटाइल टेक्सचर. इसका टेक्सचर ही अलग होता है दोस्तों. नेक्स्ट अगेन उत्तराखंड. उत्तराखंड रिंगल क्राफ्ट को भी मिला है इस बार जीआई टैग. Uttarakhand ringal is a kind of bamboo that is found in abundance in the Garhwal mountains in the range of Himalayas. Okay, the ringal bamboo is considered to be socio-economical and ecological important as a primary source of livelihood for the locals. दोस्तों, ringal weaving is an age-old craft in Uttarakhand with nearly every family involved in ringal weaving activities throughout the state. Next, Uttarakhand tamta product. Uttarakhand was rich in copper ores which were mined in both Garhwal and Kumaon region. The copper obtained from here was used to make hand-beaten copperware and musical instruments. दोस्तों, even after the mines were shut, the coppersmith community continued making the object carrying on the traditional crafts. Okay, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट अगेन उत्तराखंड तुलमा है दोस्तों. उत्तराखंड एक तुलमा ब्लैंकेट का नाम है
जो कि फेमस फॉर इट्स लग्जरियस फर एंड इंट्रिगिंग पैटर्न इज ए ओवन ऑन पिट लूम और फ्रेम लूम. फ्रेम लूम्स आप देख सकते हैं, फ्रेम इस तरह से रहते हैं, उस पर इसको बुना जाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ द woven fabric which is cut into large strips and sewed together. A blanket stitch is used to complete the edges, and these blankets were originally woven with the undyed wool, but due to the increasing demand for the blanket in different colors, they are now woven with red, blue, pink, black, different colors के होते हैं. नेक्स्ट हो गया हमारा कुमाऊं चूरिया ऑयल उत्तराखंड. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. चूरिया ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ चूरिया प्लांट. नेटिव्स ऑफ द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड हैव बीन एक्सट्रैक्टिंग. ओके, कुमाऊं आईपन भी कुमाऊं का ही है, याद रख लीजिए, जो अभी हमने पढ़ा. सो नेटिव्स ऑफ कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड हैव बीन एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल यूजिंग द एज ओल्ड प्रोसेस सिंस ईयर्स. द एंटायर ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन इज ए labor intensive. The bitter taste and overwhelming flavor of churi oil is what makes it different from others. The bitter taste and इसका flavor, ये दो ही चीज़ अलग करता है सबसे. Churi oil can be used in making of candles, ointments, lip balms and other beauty products दोस्तों. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चुनार ग्लेज पोट्री हो गया, यूपी का है ये. चुनार ग्लेज पोट्री जो कि यूनिक और एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेर्राकोटा और ग्लेजिंग वर्क माना जाता है, जो कि एक वेरी स्पेशल रेड क्ले यूज़ किया जाता है दोस्तों, जो कि रिवर गंगा से ये लोग लेते हैं और उससे ये लोग पॉटरी डेवलप करते हैं. द स्पेशलिटी ऑफ द चुनार ग्लेज पोट्री इज डायरेक्टली लिंक टू द क्ले मिट्टी ऑफ दिस रीजन विच इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम बलाव दोमात ऑफ गंगा रिवर. चुनार ग्लेज पोएट्री इज नोन फॉर द डबल फायरिंग प्रोसेस. द फर्स्ट फायरिंग इज डन आफ्टर मेकिंग द पॉट, ड्राइड इट विथ फायर इन ए ट्रेडिशनल फायरिंग सिस्टम. आफ्टर द फर्स्ट फायरिंग द पॉट्स आर कलर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनामल्स. उसके बाद डिफरेंट उसके ऊपर आर्ट्स छुड़ाया जाता है. तो चलिए नेक्स्ट है हमारा बनारस जरदोसी हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश. सो जरदोजी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल. आप सब देख सकते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा कि लड़कियों के कपड़ों में ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स होते हैं. एक पुराना और मोस्ट ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल माना जाता है वाराणसी का. इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन क्लोथिंग एंड होम डेकोरेशन. नेक्स्ट, पेन स्टॉकिंग एंड डेलिकेटली डन बाय द हैंड. बनारस जरदोजी वर्क इन्वॉल्व्स यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स ऑल्सो, याद रख लीजिए. नेक्स्ट, मिर्ज़ापुर पीतल बर्तन. मिर्ज़ापुर के पीतल बर्तन. The traditional Mirzapur Pital Bartan industry of country is located in northeastern part of UP, and Mirzapur is famous for brass articles of domestic use which are being produced by community known as Kasera. Okay, the soil of Mirzapur is also favorable for the production of Pital Bartan. This is also important. Next, Banaras wood carving भी है. Miniature wood carving statues is speciality in Banaras wood carving, and these are completely made by hand. These designs and motifs are very traditional with the minute details. इसमें आपको floral motif, शिकरगढ़, different types of leaves, Mughal design, stories. ओके, ये सारा कुछ इसमें किया जाता है. नेक्स्ट, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट. यूपी की बात करें तो वाराणसी इज ए फेमस फॉर फाइन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वर्क ऑन सिल्क फैब्रिक्स, सिल्क सारीस, ओके, स्कार्फ, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल्स एक्सेट्रा दोस्तों. एंड इट शेयर ए वेरी स्पेशल ट्रेडिशनल फ्लोरल मोटिव, बर्ड्स एंड एनिमल मोटिव एंड ट्रेडिशनली कल्चर विच वॉज ऑल्सो पॉपुलर इन बनारस सिल्क सेक्टर एंड अप्रोप्रिएट फास्ट एंड ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन. ठीक है, इसको भी GI टैग रिसेंटली दिया गया है. नेक्स्ट है हमारा रतौल मैंगो यूपी का दोस्तों. So Ratol mango, a village situated in Khekra, Tehsil of Bagpet, one of the famous varieties of mangoes that is Ratol was developed in Ratol village. Ratol mango is medium-sized fruit with a pleasant aroma and excellent taste. It is very sweet and extremely delicious दोस्तों. नेक्स्ट है हमारा मऊसारी, उत्तर प्रदेश का है ये भी. मऊसारी is mostly produced by the using silk and cotton and also using art skill yarn through handlooms. And the key characteristics अगर बात करें आप मऊसारी lies with the human skill associated with the process of production. And the weavers of the Mau were used motifs of living being rather than used to find more prominence to the color combination. The design frame used in Mau looms are unique. ये जो design frames होते हैं बहुत ही unique होते हैं. Okay, as every jacquard has different design plate. And weavers have learned the weaving from their family by working on the loom with them. Adherents, they are weavers by birth. Okay, एक शान की तरह इनको महसूस होता है क्योंकि इनके ख़ानदानी हैं और कई सदियों से जो इस तरह की मऊसारी बनाते आ रहे हैं यूपी में. ओके, डिज़ाइन इज़ मेड लोकल पीपल ओनली. नेक्स्ट, महोबा देशावारी पान. महोबा इन उत्तर प्रदेश फेमस फॉर बीटल लीफ फार्मिंग. महोबा देशावारी पान वॉज इन द पास्ट वेरी पॉपुलर इन डजन्स ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुबई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. फॉलोइंग द GI टैग, द गवर्नमेंट हैज़ नो लिंक इट्स फार्मिंग विद द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो इस बीटल लीफ को भी, देशावारी पान को भी अभी GI टैग मिल चुका है and they are finally linked to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana also. Right? So these are the important products that recently got GI tag. एक एक प्रोडक्ट के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है. ओके, तो मैं पढ़ते ही दौरान आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों.
क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 2 to 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है।